کورونا کے دوران حکومت پاکستان کی بہتر حکمت عملی نے نہ صرف ملک کو معاشی بحران سے بچایا بلکہ پاکستان میں خطرناک وائرس پڑوسی ممالک جیسی تباہی نہیں پھیلا سکا۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب گیلپ پاکستان نے شہریوں سے سوال کیا کہ کیا وہ ملک کی موجودہ صورتحال سے مطمئن ہیں تو 53% نے کہا کہ موجودہ حالات سے مطمئن نہیں ہے، کچھ نے کہا کہ بالکل نہیں ہے، کچھ نے کہا کہ کچھ حد تک نہیں ہے۔ 38% ان کی رائے یہ تھی کہ وہ موجودہ صورتحال سے مطمئن ہیں، تو کچھ مطمئن اور کچھ غیر مطمئن۔ اور کچھ جنہوں نے کہا نا کہ مطمئن، انہوں نے کہا بالکل مطمئن ہے، یہ نہیں کہا نہیں ہم مطمئن، ٹھیک ہے ہولا کھولا مطمئن ہے، انہوں نے کہا جی بالکل مطمئن ہے۔ اس سروے کا مقصد کیا تھا، اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر گیلپ پاکستان بلال گیلانی صاحب نے۔ بلال بہت شکریہ آپ کے وقت کا، گڈ مارننگ۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سروے میں پوچھا گیا سوال اصل میں کس حوالے سے تھا، یعنی معاشی، اقتصادی، سماجی، کون سی صورتحال سے ہمارے جو شہری ہیں وہ مطمئن ہیں بھی اور نہیں بھی؟ جی تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ نے بلایا۔ تو سوال جو ہے وہ مجموعی طور پر پاکستان میں ہونے والے حالات کے حوالے سے تھا۔ جب ہم مجموعی طور پہ کہتے ہیں تو ہم رسپونڈنٹ سے کہتے ہیں کہ وہ یہ سوچے کہ سیاسی حالات بھی، معاشی حالات بھی، سماجی حالات بھی، ایک مجموعی طور پر آپ پاکستان کے شہری ہیں تو آپ کے خیال سے ملک کے حالات کیسے جا رہے ہیں۔ تو اس پہ جب ہم نے یہ سوال کیا تو میجورٹی کا یہ کہنا تھا کہ حالات تو ٹھیک نہیں جا رہے۔ ایک مقصد جو اس سوال کو پوچھنے کا تھا وہ یہ تھا کہ ہم گائے بگائے عوام کی نبض یا پلس ناپنا چاہتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ لوگ مایوسی کا شکار ہیں، حالات کے سے تھوڑے سے تنگ بھی ہیں، اور اس میں لارجسٹ ریزن جو ہم نے دیکھا وہ اکنامک ایشوز کے اوپر تھا۔ ہم نے اس میں ایک اور سوال بھی ان سے کیا کہ آپ کے خیال سے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ تو دو بڑے مسئلے جو کہ 2/3 پاکستانیوں نے ہمیں کہا، وہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری۔ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے یہ 2 میجر ایشوز کی طرف نشاندہی کی۔ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ حالات خراب جا رہے ہیں ملک کے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے اور مہنگائی میں کمی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب انہی پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے ہم پروونشل بریک ڈاؤن کا ذکر کرتے ہیں، اور اگر میں بات کروں جی کووڈ سے نمٹنے کے لیے جو حکمت عملی اپنائی گئی اس میں سندھ اپنی بہت تعریف کرتا ہے۔ سندھ گورنمنٹ کہتے ہیں جی پہلے دن سے ہم نے بہت اچھا کام کیا، سب سے پہلے ہم نے کام کیا، باقی صوبوں نے فالو کیا ہے۔ یہ جو بات پہلے دن سے سندھ گورنمنٹ کرتی آئی ہے، آپ کے سروے سے یہ چیز پروو ہوتی ہے یا کہ سروے اس کو ڈینائی کر رہے ہیں؟ جی جب یہ سوال پوچھا گیا تو سب سے زیادہ جو بے چینی ملک کے حالات کے حوالے سے پائی گئی وہ سندھ کے صوبے میں تھی۔ اچھا جی اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ سندھ جو ہے اس میں کراچی بھی پایا جاتا ہے۔ کراچی شہر جو ہے وہ بہت بڑا ایک کاروباری مرکز ہے، اور جب ملک میں اکانومی کا پٹھا بیٹھا ہوا ہو یا بہت تیزی سے آگے نہ بڑھ رہا ہو تو یہاں مایوسی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اکنامک ایشوز کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کووڈ کی سچویشن کے بارے میں لوگوں کی رائے مختلف ہو اور لوگ کہیں کہ سندھ کی حکومت نے اچھا کام کیا ہے، مگر اوور آل جو اکنامک ایشوز ہیں ان کی وجہ سے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو اس لیے آئی تھنک جو ہمارا مقصد جو ہے وہ عوام کی نبض لوگوں تک اور اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان تک پہنچانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب وہ یہ دیکھیں کہ ان کی کارکردگی اچھی ہے تو ساتھ میں ایک رائے عوامی بھی نظر آئے کہ جس میں عوام جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ حالات بہت زبردست ہو چکے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حالات تو ابھی بھی کافی پسماندہ ہیں اور ہمارے لیے کچھ آپ کریں۔ تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم عوام کی آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو عوامی رائے تھی، جو سروے تھا، اس کے جو سوالات تھے وہ زیادہ تر کس عمر کے افراد سے کیے گئے؟ نوجوان طبقہ تھا ہمارا، درمیانی عمر کے تھے، سینئر سٹیزن تھے؟ بالکل، جو سروے کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عام پاکستانی کا ایک نمائندہ سیمپل چوز کیا جائے۔ تو عام پاکستانی آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 18 سے 30 سال کی عمر کے جو افراد ہیں، پاکستان کیونکہ ایک بہت تیزی سے آبادی میں بڑھتا ہوا ملک ہے
تو تقریباً 40% پاکستانی جو 18 سال سے بڑی عمر کے ہیں وہ 18 سے 30 کی ایج گروپ میں ہیں. تو ہمارے سروے میں بھی تقریباً 40% لوگ 18 سے 30 سال کی عمر میں تھے. تقریباً 30% لوگ جو ہیں وہ 30 سے 50 سال کی عمر میں تھے, یعنی میچور ایج کے تھے. اور 50 سال سے بڑی عمر کے افراد جو ہیں وہ تقریباً 20% کے حساب سے تھے. تو جیسے ملک کی آبادی میں شیئر ہے ایج کا, ہم نے سیمپل میں بھی ویسے ہی لیا. صحیح. اور آپ کے ان سروس کے بعد جو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں, جو سجیشنز ہوتی ہیں, کیا وہ حکومت تک پہنچتی ہیں, اداروں تک پہنچتی ہیں, اور اس پر ڈسکشنز ہوتی ہیں آپ سے کہ اسے کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بالکل. ہم گائے بگائے کچھ تو آپ کے تعاون سے بھی اور میڈیا کے تعاون سے ان تک اپنی رائے بھی اور عوام کی رائے بھی اور ریکمنڈیشنز بھی پہنچاتے رہتے ہیں. اور گائے بگائے ہم اپنی رپورٹس جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں. اور اکثر اوقات جو ہے ایک مثبت ایک ہمیں رجحان نظر آتا ہے کہ لوگ حکومت جو ہے وہ ہم سے رابطہ کر کے مزید جاننے کی کوشش کرتی ہے, مزید ریکمنڈیشن کی طرف جاتی ہے. پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے. آئی تھنک ہم ہمیشہ پازیٹیو رائے سے دیکھتے ہیں حکومت کو. یہ کوئی چھوٹا چیلنج نہیں ہے. پاکستان ایک دنیا کا 5واں بڑا آبادی میں ملک ہے. ہم ایک غریب ملک ہیں. تو ان ایشوز کو جو ہم اجاگر کرتے ہیں, جو کووڈ سے ریلیٹڈ ہیں, اکانومی سے ریلیٹڈ ہیں, حکومت اپنی کوشش کر رہی ہے. مگر ہم مل کر بیٹھ کر سوچ بچار کر کے عوامی رائے کو سامنے رکھ کر آئی تھنک حکومت کوشش کرتی ہے. ہم جیسے ادارے بھی ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بلال, یہ سروے جو تھا یہ دیہی اور شہری دونوں علاقوں میں کیا گیا؟ جی بالکل. جو ہمارے تمام سرویز ہیں ان میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ عام پاکستانی کی رائے لیں. تو عام پاکستانی تقریباً 50 سے 60% پاکستانی ابھی بھی گاؤں میں رہتے ہیں اور دیہی علاقوں میں رہتے ہیں. تو اس سروے میں بھی ایسا ہی تھا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ بلال صاحب. لاہور ماسک پہنتا ہے. صوبائی دارالحکومت کی انتظامیہ نے منفرد مہم کا آغاز کر دیا. یہ مہم کیا ہے, اس پر ہمارے نمائندے دانیال عمر نے خصوصی رپورٹ تیار کی ہے, دکھاتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ 5 سے 10 روپے کا ایک ماسک لاہور کی صرف 26% آبادی استعمال کرتی ہے؟ ایسا میں نہیں کہہ رہا, بلکہ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے. لاہور کو کورونا کی چوتھی لہر سے بچانے کے لیے ایک ایسا منصوبہ لایا گیا ہے جس سے اکثریت کو ماسک پہننے کی طرف لایا جائے گا. وہ منصوبہ آخر ہے کیا, آئیے جانتے ہیں. 1.5 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر لاہور, عید اور تہواروں پر کورونا SOPs ہوا میں اڑاتا لاہور. کورونا کی تیسری لہر میں پاکستان کا سب سے زیادہ متاثرہ شہر لاہور. صوبائی دارالحکومت کے اس رویے پر لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز نے ریسرچ کا فیصلہ کیا. تحقیق میں سامنے آیا کہ کئی علاقوں میں شہریوں کی جیب ماسک خریدنے کی اجازت نہیں دیتی. لاہور کے 16 علاقوں میں ماسک پہننے کی شرح انتہائی کم ہے. ہم نے لاہور کے ہر سب ڈویژن کی مارکیٹس اور ماسکس میں ہم نے ٹیمز بھیج کے ہر ایریا کا ماسک ویئرنگ ریٹ کیلکولیٹ کیا. وہ بہت ویری کر رہا تھا. سو وی ور گیٹنگ نمبرز فرام ایز لو ایز 4% ٹو ایز ہائی ایز 40%. جو اوور آل ریٹ اس وقت آ رہا تھا مسجدوں اور مارکیٹس میں آ رہا تھا اراؤنڈ 28% آل اوور لاہور. ماسکس میں کم تھا, ماسکس میں 20% تھا. اینڈ اگر اوور آل لاہور کا ماسک ویئرنگ ریٹ اسیس کریں تو وہ 26%. تحقیقکاروں نے شہریوں کو ماسک پہنانے کے لیے ضلع انتظامیہ سے مدد طلب کی تو شروع ہوئی لاہور ماسک پہنتا ہے مہم. کورونا کی چوتھی لہر سے بچنے کے لیے شہر کے ایک گھر میں مفت ماسک پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا. ایڈیشنل کمشنر لاہور کے مطابق ماسک خریدنے کے لیے رقم مخیر حضرات عطیہ کریں گے. یہ 18 جولائی تک ہماری اس کی فرسٹ فیز کی ڈیڈ لائن ہے, اور اس کے بعد ہم اس نیکسٹ فیز کے اندر 100% ہاؤس ہولڈ آف لاہور جو ہے اس کو کور کریں گے. ماسک دینا اور اس کے بعد ماسک دے کر اس کو انشور کروانا, ایگزیکیوٹ آپریشن لیول پہ انشور کروانا کہ تمام لوگ اس کو ماسک یوز کر رہے ہیں کہ نہیں, وہ بھی اسی کیمپین کا حصہ ہے. جن ایریاز کو ابھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے وہاں پہ ہماری ٹیمز جا کے انفورسمنٹ کریں گی کہ لوگ ماسک پہن رہے ہیں کہ نہیں پہن رہے. یہ بات اس وقت پروون ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے 4th ویو سے نہیں بچ سکتے ماں سوائے اس کے کہ ہم ماسک پہنیں.
मास्क को घर घर पहुंचाने के लिए पाकिस्तान पोस्ट ने मुफ्त सहूलत दी है। जनरल पोस्ट ऑफिस में मुहिम के लिए खसूसी लिफाफों में मास्क पैक किए जा रहे हैं। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की मदद से हासिल घरों और कमर्शियल मुकामात के पते दर्ज किए जाते हैं। चीफ पोस्ट मास्टर लाहौर के मुताबिक इब्तिदाई मरहले में मास्क की तकसीम का आगाज अंदरून लाहौर से किया गया है। पेंडेमिक में हम बिल्कुल लाहौर के अवाम के साथ हैं। वी विल डू आवर बेस्ट। हम तमाम लोगों के घरों में मास्क पहुंचाएंगे। हमारी स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड टीम्स हैं, सॉर्टिंग सेल हैं, पोस्टमैन है, जो कि विद इन अ डे मेक श्योर करेंगे कि जब हमें रिसीव होता है तो हम विद इन अ डे लोगों के घरों में इसको तकसीम करें। डाकिया मास्क लेकर पहुंचता है तो हर घर वाले को इसे पहनने की तलकीन भी करता है। पोस्टमैन, वालेकुम अस्सलाम सर, ये लाहौर की इंतजामिया की तरफ से आपको मास्क दे रहे हैं, इन्हें आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है सर। तहकीककारों का ख्याल है कि लाहौरियों को मास्क पहनने की आदत डलवा दी तो चौथी लहर से बचाव मुमकिन है। हुकाम पुर उम्मीद है कि मुहिम की बदौलत शहर में मास्क पहनने की शरह 70% तक पहुंच जाएगी। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। तो दानियाल की रिपोर्ट आपने देखी। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब ने। उस्मान साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी नज़र में क्या वजह है कि लाहौर में कोरोना से बचाव के लिए फेस मास्क के इस्तेमाल और ख़रीदारी का जो रुझान है वो इंतहाई कम है? क्योंकि ये हम पहले जब थर्ड वेव थी उसका स्टार्ट था, हम तब भी जिक्र करते थे कि लाहौरी बहुत ज़्यादा जो है रिलैक्स नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा जो हैं वो समझते हैं कि बहुत ईजी काम है, मास्क नहीं भी पहनेंगे तो चलेगा। फोर्थ वेव का स्टार्ट है ये, इसमें भी कुछ ऐसी ही खबरें आ रही हैं, ऐसा क्यों है? जी, ये अगर आप याद करें फर्स्ट वेव, फिर सेकंड वेव, फिर थर्ड वेव, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है हमारी कि जैसे ही हम अपना लॉकडाउन नरम करते हैं तो ये इम्प्रेशन जाता है कि शायद कोरोना चला गया है और लोग जो है वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं और मास्क पहनना कम कर देते हैं या जो दूसरे सोशल डिस्टेंसिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनको भूल जाते हैं। और हमने देखा, आप लोगों ने बल्कि ख़ुद रिपोर्ट भी किया, लाहौर वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द ओनली सिटी जिसने थर्ड वेव की पीक के ऊपर सब लोगों ने मास्क पहने हुए थे। यानी कि आपको नज़र आता था इनवेरिएबली जब आप बाहर निकलते थे, कोई शख्स आपको मास्क के बगैर नहीं नज़र आता था। बड़ा रिजॉल्व शो किया लाहौर ने। बट एज सुन एज वी गॉट आउट ऑफ द थर्ड वेव, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कंप्लेसेंसी आनी शुरू हो गई और मास्क पहनने का जो रुझान है वो कम होना शुरू हो गया। और ये अब हमारे ऊपर बड़ा लाजिम हो जाता है कि हम लोगों को याद कराएं कि कोरोना जो है वो गया नहीं है। जब तक हम तमाम लोग वैक्सीनेट नहीं करवा लेते तब तक हमें सबको एहतियात करनी है। और एहतियात के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो मास्क पहनना है। मेरी नज़र के मुताबिक मास्क पहनना एक स्टेटमेंट है, वो ये स्टेटमेंट है कि मैं एक ज़िम्मेदार शहरी हूँ, मैं मोहतात शहरी हूँ, मैं जब बाहर निकल रहा हूँ तो मुझे इस बात का एहसास है कि बाहर एक वबा है और इसलिए मैंने मास्क पहना हुआ है, मुझे हाथ ना मिलाएं, मुझसे गले ना मिले। ये एक स्टेटमेंट है और ये लोगों को अवेयरनेस देना हमारी ज़िम्मेदारी है, हम तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है। जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनकी भी, मीडिया ने बड़ा पॉजिटिव रोल पहले भी प्ले किया, अब भी हम देखते हैं कि मीडिया गाहे बगाहे ये वीकनेसेस और ये निशानदेही जो है वो करता रहता है। बिल्कुल उस्मान साहब, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि याद कराना पड़ता है आवाम को, चूँकि हम भूल जाते हैं। ये अब याद दहानी के लिए जो आपकी ये मुहिम है, ये बहुत अच्छी मुहिम कि लाहौर मास्क पहनते। सर मुझे लेकिन ये बताएं, टारगेट क्या सेट किया है, कितने मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, क्या हर घर तक पहुंचेंगे? जी फ्रैंकली जब मैंने ये कैंपेन स्टार्ट की थी, जब इसको शुरू में कंसीव कर रहे थे, हमें बहुत मुश्किल लगा। हमें ये लगा कि हमें लाहौर में सर्वे करके सिर्फ ऐसी जगहों पे मास्क तकसीम करना चाहिए जहाँ पे लोग कम मास्क पहनते हैं, बिकॉज लाहौर बहुत बड़ा शहर है। और जो फ़लसफ़ा था इस कैंपेन का वो ये था कि हमने फ्री मास्क देने हैं, नंबर 1, और नंबर 2 मास्क जो है वो 2 जगहों पर तकसीम करें। यानी हमने उसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का, आम तौर पे हमारे मुशाहिदे में ये आता है कि हम किसी जगह पर खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे मास्क तकसीम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रिसर्च के मुताबिक ये ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है। ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप लोगों के घरों में मास्क पहुँचाएँ। तो हम लोगों के घरों में मास्क पहुँचाने को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं, और सड़कों पे खड़े होके या चर्चेज़ में या मसाजिद में या मार्केट्स में खड़े होकर मास्क देने को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने करनी थी तो हमारा टारगेट जो था
وہ بہت بڑا تھا. لاہور شہر کو دیکھیں, بہت بڑا شہر ہے. تو شروع میں ہم نے انیشلی یہ سوچا کہ ہم صرف ان ایریاز میں ماسک تقسیم کریں جہاں پہ جینونلی ہمارے سروے کے مطابق لوگ کم ماسک پہن رہے ہیں, اور اس ٹارگٹ کو لے کے فرینکلی میں چلا تھا آگے. لیکن آپ یقین جانیے کہ وہ ماسک اتنے زیادہ آنے شروع ہو گئے کہ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی لاہور کے ہر گھر میں ماسک پہنچائیں گے, اور یہ پیغام کے ساتھ پہنچائیں گے کہ آپ نے ماسک کیوں پہننا ہے, کب تک پہننا ہے اور کب تک پہنے رکھنا ہے. صحیح ہے. اچھا عثمان صاحب, ایک اور چیز سے متعلق بھی بتائے گا. چلیں, یہ حکومت وقت نے تو کہہ دیا ہے اور اس کو بڑا سختی سے بھی عمل درآمد کرنے کے لیے کہا ہے کہ ویکسینیشن کا جو آپ کا سرٹیفکیٹ ہے وہ چیک کیا گیا ہے. کیا آپ کی مہم میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ جب گھر ماسک دینے جائیں یا اس مہم کے تھرو ماسک جب پہنچایا جا رہا ہے, تو اگر ہم یہ بھی شامل کر لیں کہ ہم سرٹیفکیٹ بھی چیک کریں لوگوں کا کہ کس گھر میں کتنے لوگوں نے ویکسینیشن کرا لیا, اگر ہم اس چیز کو بھی اس مہم کا حصہ بنا لیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ مہم تھوڑی زیادہ بہتر ہو جائے گی؟ دیکھیں, یہ جو مہم ہے اس میں ہم ہر گھر میں ماسک دینے نہیں جا رہے. ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم نے جو لیسکو ہے وہاں سے ایڈریسز لیے لوگوں کے, اور اس کے بعد پاکستان پوسٹ سے ہم نے ایک ایم او یو کیا ہے. پاکستان پوسٹ فری آف کاسٹ ہمارا یہ ماسک اور ہمارا یہ پیغام ہر گھر میں پہنچائے گی, اور یہ ڈاکیے کے تھرو پہنچے گا پیغام. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس والنٹیئرز ہیں, رضاکار ہیں, جو کہ ہمارے لیے سروے کر رہے ہیں کہ جب ہم ماسک کسی جگہ پہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے, وہاں پر لوگ ماسک ویئرنگ میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. ساتھ ساتھ ہماری کمپلائنس بھی چل رہی ہے, یعنی کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز پھر سیکنڈ فیز کے اوپر ان کی کمپلائنس بھی کرتے ہیں. میں ایک آپ کو بات بتانا بھول گیا جو کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جب ہم نے یہ کیمپین سٹارٹ کی تو چونکہ ہم نے فری ماسک لینے تھے, ہم نے مختلف مخیر حضرات کو بلایا, مختلف جو ہماری لاہور چیمبر ہے اس کو بلایا, مختلف جتنی بھی فلینتھراپسٹ ہیں ان کو بلایا, اور انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے ماسک ڈسٹریبیوٹ ہمیں دینے شروع کیے. ہمیں 5,000 ماسک بھی ملے, 50,000 ماسک بھی ملے, 1,00,000 ماسک بھی ملے. لوکل بہت زیادہ ماسک اکٹھے ہوئے. لیکن یہ کیمپین, دس کیمپین میڈ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز, اور ایک امریکہ کی کلودنگ برانڈ ہینز برانڈز کے نام سے ایک کمپنی ہے جس نے ہمیں 30 ملین ماسک ڈونیٹ کرنے کا عندیہ دیا ہے, اور وہ اس وقت وہ شپمنٹ کی ڈیٹیلز وغیرہ فائنلائز کر رہے ہیں. یہ 3 کروڑ ماسک جب لاہور میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لاہور کے ہر گھر میں یہ ماسک بالکل, پھر تو ہر گھر میں لاہور کے ہر گھر میں جب ماسک پہنچے گا لوگ ماسک پہنیں گے ایک چھوٹے سے پیغام کے ساتھ. جی ایک چھوٹے سے پیغام کے ساتھ کہ آپ نے ماسک کیوں پہننا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہماری جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے, جو سیوک سینس آف رسپانسبلٹی ہے, اس میں بہت بہتری ہے. یہ نو ڈاؤٹ سر, یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیمپین کامیاب ہوگی. گریٹ انیشیٹو اینڈ کیمپین, نو ڈاؤٹ. سر مجھے پلیز یہ بھی شیئر کیجیے گا, جب ہم کووڈ رائز کی بات کریں, 4th ویو, لاہور میں کیا سچویشن ہے سر؟ کیا ڈیلٹا وائرس کی وجہ سے زیادہ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, ابھی فی الفور اتنی زیادہ انکریز نہیں ہے. پچھلے 4-5 دنوں میں دیکھیں ہم, بلکہ پچھلے 10 دنوں میں پرٹیکولرلی دیکھیں تو ہماری جو پازیٹیوٹی کی پرسنٹیج تھی وہ 1% سے رائز کر کے 3% پہ آئی ہے. سو دس از این انکریز, دس از ناٹ اے ویری سبسٹینشیل انکریز, بٹ اٹ ڈز انڈیکیٹ کہ انکریز آ رہی ہے. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ انکریز ہم اس دن سے کیلکولیٹ کر رہے ہیں جس دن ہم نے تمام سیکٹرز کھول دیے تھے. یعنی کہ ہم نے کہا تھا کہ اب سینما ہالز بھی کھل گئے ہیں, گو کہ ہم نے ان کے ساتھ کچھ ریسٹرکشنز لگائی ہیں. ہم نے انڈور ڈائننگ بھی کھول دی, انڈور شادی ہالز بھی کھول دیے, لیکن ساتھ میں آبویسلی ریسٹرکشنز ہیں کہ ویکسینیٹڈ لوگ یہ کام کر سکتے. یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اتنی اس طرح رائز ہوگا, ایکسپیکٹڈ تھا؟ نہیں, obviously بالکل ایکسپیکٹڈ تھا. جب ہم جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اگلا مہینہ ہمارے لیے ٹف ہو سکتا ہے پرووائڈڈ اگر ہم احتیاط نہ کریں. جہاں تک آپ نے ڈیلٹا ویریئنٹ کی بات کی, دیکھیں ڈیلٹا ویریئنٹ اسلام آباد میں NIH کی لیب نے رپورٹ کیا ہے, آفیشیلی رپورٹ کیا ہے. ہمارے پاس بھی کچھ پرائیویٹ لیبز نے PCR کٹ کے اوپر ڈیلٹا ویریئنٹ لاہور میں رپورٹ کیا ہے. obviously ان کی جین سیکوینسنگ ہو رہی ہے, آج شام تک اس کے ریزلٹس آ جائیں گے. بٹ یہ بات ریلیونٹ نہیں ہے. ہمیں سب کو پتہ ہے, ہمارے مشاہدے میں یہ بات ہے کہ ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے اس کی سگنیفیکنٹ بات ہی یہ ہے کہ وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. اٹ از اے میٹر آف ٹائم کہ ڈیلٹا ویریئنٹ یہاں پر ہوگا. کرنا ہمیں کیا ہے, ہمیں صرف اور صرف احتیاط کرنی ہے, ہمیں ویکسینیٹ کروانا ہے اپنے آپ کو اور احتیاط کرنی. اور اس میں بھی سر کہا یہ جاتا ہے کہ جو ویکسینیشن ہے وہ ضروری تو بہت ہے, لیکن احتیاط اس سے بھی زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ ایسے میوٹنٹ
रेजिस्टेंट वायरस भी हैं, फिर वैक्सीनेशन का असर उस पर कम हो जाता है। सर आप मुझे एक बात और बता दें, क्या हुकूमत और इंतज़ामिया ऐसा भी काम कर रही है कि जिस तरह हम अक्सर ये देखते हैं सर कि बैंक के अंदर तो SOPs पर अमल दरामद है, बाहर लाइन में नहीं है, एयरपोर्ट के अंदर तो अमल दरामद है, लेकिन जो बाहर लेने आए हैं उन पर उसका इतलाक नहीं। इवेंट्स हो रहे हैं, वो गवर्नमेंट लेवल पर भी हो रहे हैं, वो प्राइवेट सतह पर भी हो रहे हैं, और उन इवेंट्स पर SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इसको भी देखा जा रहा है सर? जी आप देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जब हम किसी सेक्टर को खोलते हैं तो हम ये समझ के, सोच के और इस वादे के साथ खोलते हैं कि वो सेक्टर जो है वो भी हमारी मदद करेगा और हम SOPs पे कंप्लाई करेंगे। लेकिन देखने में ये आया है कि कभी भी SOPs पे कंप्लाइंस नहीं होती। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊं, पिछले 3-4 दिनों से हम लाहौर में NPIs की इन्फोर्समेंट के लिए बाहर निकल रहे हैं। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग उन लोगों को अलाउड है जिन लोगों के पास वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द रेस्टोरेंट्स आर नॉट चेकिंग दोज सर्टिफिकेट्स। अगर आप खुद चेक नहीं करेंगे, लामोहल्ला हमें आके इंडिविजुअल एक्शन लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक सब कलेक्टिवली इस रेस में, इस जंग में, इस हमारे मिशन में शामिल नहीं होंगे। एक्शन लिया गया, कामयाब नहीं हो सकेंगे। हमारे लिए किसी रेस्टोरेंट में जाके एक सर्टिफिकेट को चेक करना ये पॉसिबल तो है, लेकिन आप खुद सोचिए कि शहर में अगर हज़ारों रेस्टोरेंट्स हैं तो कितने लोग जाके कितने रेस्टोरेंट्स को एक दिन में चेक कर लेंगे। ये जिम्मेदारी बहरहाल हमारी बिज़नेस कम्युनिटी की आती है, जो पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जिनको ये रिलीफ मिली है उनकी आती है कि वो इंश्योर करें कि उनकी जो हदूद हैं, उनकी जो प्रेमिसेस हैं, उनमें नॉन वैक्सीनेटेड लोग दाखिल ना हों। अदरवाइज़ खुदा न खास्ता क्या होगा कि हम फिर ये सारी बातें करते करते, ये सारी अवेयरनेस फैलाते बिल्कुल, और उस्मान साहब फिर ना चाहते हुए वक्त को, बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ना चाहते हुए भी हुकूमत वक्त को सख्त उठाने पड़ेंगे। और फिर हम देखते हैं कि हमारी आवाम या हमारी ताजी बिरादरी ज़्यादा बोलती हुई हमें नजर आती है कि क्या किया, कारोबार बंद कर दिया, हमें नुकसान होगा, तो पहले ही एहतियात कर लें। तो जनाब अभी आगे बढ़ते हैं और आई थिंक एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। वेलकम बैक जनाब। अब जरा विफाकी दारुल हुकूमत की बात करते हैं। शहर बेमिसाल के जगमगाते जलवे, इस्लामाबाद रोशनियों का शहर बन गया है। शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। हसीन जलवे अब दिन में नहीं रात में भी आंखों को भाएंगे, दिलों को गरमाएंगे। वैसे रोशनी दिलों को गरमाती है? गरमाती, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ दुल्हन लाइट पहनती है। वैसे कुछ दुल्हन लाइटें पहनती है क्योंकि पहले ऐसे फिल्टर्स आ गए। अच्छा, रहम खान की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इस्लामाबाद खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में से एक, शहर बेमिसाल भी कहलाता है ये नगर। इस सरसब्ज़ व शादाब शहर के हुस्न दिलकशी को रात के साए भी अब छुपा नहीं सकेंगे। ये शहर अब तो रात में भी खूब जगमगाएगा, देखने वालों के दिलों को लुभाएगा। इससे रोशनियों के शहर बनाने की जो ठान ली गई, आइए देखते हैं। शहर बेमिसाल की खूबसूरती अंधेरे में भी मांद क्यों पड़े। जगमग करते दरख्त अब शहर की चकाचौंध बढ़ाएंगे, रंगीनी और रोशनी का पैगाम लाएंगे। CDA ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया, क्योंकि इस्लामाबाद को खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत बनाने का मिशन है। इस्लामाबाद जैसा कि आपको जानती हैं कि दूसरे नंबर का इसको खूबसूरती में माना जाता है पूरी दुनिया में, दारुल खिलाफा जो है, तो इसके माहौल को बेहतर बनाने के लिए CDA इंतजामिया पिछले काफ़ी से काम कर लिए। रात को मजीद इसको खूबसूरती को निखारने के लिए हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम शुरू किया था, जिसमें स्ट्रीट लाइट्स को भी हमने फंक्शनल किया था। तो साथ साथ में हमने इसकी जो खूबसूरती है, दरख्त के नीचे लाइट्स लगाई हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स में सिट आउट एरियाज़ बनाए, वहाँ पे भी लाइट्स डेकोरेशन लगाई हैं। और इसमें हमारे अपने रिसोर्सेज हैं और साथ में हमें DMA का ताउन भी हासिल है। हमें बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, इसमें से हमारा मूड भी बहुत फ्रेश हो जाता है। अगर हम लोग बहुत अपनी जॉब से जैसे थके हुए आते हैं तो लेकिन इन लाइटिंग्स हम यहाँ से गुजरते हुए देखते हैं तो हमारा मूड बहुत ही फ्रेश हो जाता है। इस्लामाबाद ब्यूटीफुल कैपिटल जो है वो वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आता है और हमारी कोशिश है कि ये 1st नंबर पे आए। यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो भी बहुत कोशिश कर रही है। पहले हमें कुछ ख़ास मौक़ों पर जैसा कि ईद होगी, कोई फेस्टिवल हो गया, हमें लाइटिंग नज़र आती थी, लेकिन अब इस्लामाबाद में हमें आम रूटीन पर भी बहुत लाइटिंग नज़र आती है। बरक़ी कुमकुमों से जगमग करता प्यारा परचम भी जिना सुपरमार्केट में नस्ब किया गया है, जो हर गुजरने वाले के दिल में वतन से मोहब्बत के एहसास को तरोताज़ा कर देता है। अब दिन हो या रात, विफाकी दारुल हुकूमत के जलवे देंगे सबको मात। साथ ही शहरियों की ये भी दुआ है कि पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा से मुल्क के चप्पे चप्पे तक
हो ऐसा ही समा तो जहां में बढ़ेगी पाकिस्तान की शान। कैमरामैन मोहम्मद आमिर और राहिल कुरैशी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। बढ़ते हैं आगे और लेकर चलते हैं फैसलाबाद की मंडी, चूंकि यहाँ पर धूम मचाने वाले ऑस्ट्रेलियन बैल की हमने बात करनी है। वजन है इसका 30 मन, 10 फुट लंबा और 6 फुट ऊंचा बैल रात को जब मंडी पहुंचा तो सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। स्क्रीन पर आपको दिखावे में पांडा पांडा वाली लुक आ रही है। मालिक भी बैल की खूब आवभगत कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे यूसुफ चीमा ने। यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम भाई, शुक्र अल्लाह का। यूसुफ, इतना प्यारा सा बैल, मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा सा बताएं इसकी खुसूसियात से मुतालिक, क्या कुछ खाता है, कितना खाता है, क्या बहुत ज़्यादा खाता है? शेख भाई, मैं वैसे पर्सनली देखूं तो मैं ना इंटरेस्ट ले रहा था जानवरों में। मालिक से बात हुई तो वो बताता है कि यार हम लोग इसको तकरीबन 1000 रुपये का रोज़ाना का खिलाते आ रहे हैं। तो मैंने थोड़ा पूछा, मैंने कहा इसकी एज कितनी हो गई है? कहता है 2.5 साल तकरीबन इसकी उम्र हो गई है। तो 2.5 से पौने 3 साल, यानी कि तकरीबन 30 माह में अगर वो 1000 के हिसाब से 30,000 खा भी गया है तो भाई इससे अच्छी डील या इससे अच्छा बिजनेस क्या होगा कि एक जानवर का भी 7 लाख मांग रहे हैं। ठीक है, तो 7 लाख कि आपको इनकम हो जाए 2.5 साल के मतलब एक वक्फे के दौरान, और इनकम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है सिर्फ 30,000 की, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या होगा? सही। तो यूसुफ, आप ये तो नहीं तो अगर ओवरऑल बात की जाए, यही कारोबार करना शुरू कर दें। मैं एग्जैक्टली मतलब बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था इस हवाले से। देखें कि मतलब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी बिजनेस कोई करना चाह रहा होता है तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा रिस्क होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनके मालिक का खुद बताना है कि यार तकरीबन 1000 का डेली एवरेज, उसमें दूध भी आ जाता है, मुख्तलिफ मक्खन आ गया, मुख्तलिफ तरह के उसको चारे आ गए, उसको वंडा आ गया, मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करने के बाद जो है जानवर को 1000 रुपये की तकरीबन दिन का एक बैल जो है वो खा रहा होता है। तो इन सारे मामलात के साथ 30,000 के अगर फिर भी अगर प्लस माइनस करके अगर 50 भी कर लिया जाए तो 7 लाख की डील बुरी नहीं है। सही। नहीं, एक महीने में 30,000 रुपये लग रहे हैं इसके खाने पे। डेली का 1000 है ना यूसुफ, ऐसा ही है? डेली का 1000 है ना, तो 2.5 साल का तकरीबन 30 माह हो गए। 30 माह का 30,000 एक महीने में वो 30,000 का खा रहा है। आपने हिसाब भी गलत करा दिया और हमारी डील भी गलत करा दी है। नहीं, 2.5 से भी ऊपर जा रहा है। 3 लाख बन जाएगा। 3 लाख, हाँ 3 लाख बच जाएगा। देखे ना यार, मैं तो परेशान हो गया। अच्छा शुएब 1 मिनट के लिए कहने लगा कि मैं वाकई ये काम कर सकता हूँ। शुएब वाकई 1 सेकंड के लिए। अच्छा, वो कुछ बता रहे हैं, आप उनसे बात करना चाह रहे हैं? यूसुफ प्लीज कीजिए। चले, इनके मालिक हमारे पास हैं, उनसे थोड़ा सा पूछते हैं। अच्छा, क्या देखते हैं जानवरों के हवाले से, आप लोग जो अपने पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है, सबसे पहले तो इसकी क्वालिटी बताएं कि इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, इसके अंदर क्या क्या, कि मतलब कोई लेगा तो ये क्यों लेगा? सिर्फ क्यों ऑस्ट्रेलियन सांड आप इसका नाम ले रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलियन सांड है? अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम राशिद जवेद, चक नंबर 215 कंबो, किसान फार्म से पाला हुआ जानवर है। और भाई ये ने बोला कि क्यों लेना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा बैल और वज़न से सबसे बड़ा जानवर है, दूसरे जानवर से अलग है। जैसे साहिवाल, दूसरे जानवर, देसी जानवर, उनसे बड़ा ये जानवर है। ठीक है। नहीं, कोई गर्मी का कह रहे थे कि ज़्यादा महसूस करता है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन है, तो ऑस्ट्रेलियन को डेली नहलाना भी ज़्यादा पड़ता है। इसकी क्या क्या खासियत और इसके अलावा क्या है? इसमें इसकी दिन में 3-4 बार तो इसको नहलाते हैं। गर्मी हो तो कम से कम इसको गाजर का जूस दिया जाता है। जूस देने के बाद इसको दूध, मक्खन, अब उसके बाद सेक, मुरब्बा। ये सच में ये चीज़ें खिलाते हैं या सिर्फ कहते ही हैं? मैंने तो आज तक नहीं कभी देखा अपने गांव में कोई किसी जानवर को सेब का मुरब्बा खिलाता हो या इस तरह की चीज़ें खिलाता हो। हम इसे अपने बच्चों से भी ज़्यादा इसको पालते हैं, ज़्यादा इसकी परवरिश ज़्यादा करते हैं, इसलिए इसको ये सांड को खिलाते हैं। बड़ा इसलिए हुआ है, कम नहीं खिलाएंगे। अच्छा, अभी कितना वजन, कितने आपके ख्याल से कितना वजन क्या है और कितने का सेल करने जा रहे हैं? कम से कम 10 लाख रुपया इसकी सेल होगी। 10 लाख। तो इसको यही है कि हम इसकी कोशिश है यही है कि बड़े से बड़ा इसको। कितना वजन है इसका? 30 मन वजन है। 30 मन वजन है। देखिए शुएब, अब तक जो हम लोग मंडी में आते जाते रहते हैं, हमें ये बैल जो है, इससे पहले हमने मुख्तलिफ बैल देखे जो बैल की कीमतें तकरीबन 18 मन का बैल होता था, उसकी कीमत ये लोग तकरीबन 9 लाख तक मांग रहे थे। इन भाई ने कीमत के हवाले से अगर देखें तो बड़ा मुनासिब पैसे मांगे हुए हैं यहाँ पे। मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, या फिर कभी मंडी का अंदाजा नहीं है। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि जो मैं हिसाब लगा रहा हूँ 9 लाख का तो खाना खा गया ये, तो 10 लाख वो उसके मांग रहे हैं। थोड़ी बार्गेनिंग होगी तो 9 लाख में दे देंगे। फायदा क्या है इनको? फिर ये वाकई 9 लाख का खाना खाया, क्या फायदा होगा?
वही ना, अगर उस तरह से बताएं तो फिर तो उनको कोई फायदा नहीं होगा। मेरा ख्याल है क्योंकि ये अभी आज ही मंडी आए हैं, गुज़श्ता रात ही, तो शायद इनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि मंडी से कितनी कितनी कीमतें लोग मांग रहे हैं और कितने कितने में बिक रहा है। शायद अगर कोई अभी कोई जो इंटरेस्टेड गाहक हो, सीरियस बायर अगर आएगा तो यूसुफ एक सीरियस बायर आ चुका है, बड़ा ये बैल है। यूसुफ एक सीरियस बायर आ चुका है, महक सीरियस बायर है, महक को ये पसंद आ गया है, तो जरा महक की डील तो कराएं इनसे, कितने का बेचेंगे? अगर मैं खरीदना चाहूं, महक के लिए खुसूसी डिस्काउंट किया है, डिस्काउंट होगा और क्या कितने में मिल सकता है? डिस्काउंट देख लें भाई, अगर महक इंटरेस्टेड हैं इस चीज के अंदर तो जाहिर है मैंने बताया मुल्क की नाज एंकर आपने बैल खरीदना चाहती है। अच्छा, फाइनल कितने का दे देंगे अंदाजन? अगर हमारे पास एक बायर मौजूद है, वो इस टाइम हमारे साथ लाइन पे है, ठीक है, हमारे समा के ही वो होस्ट हैं इस वक्त, अगर खरीदना चाहें कितने का भेज देंगे? एंड रेट बताएं कुछ। 9.5 लाख पर मुनासिब करें यार, ये तो 9.5 लाख तो बहुत ज्यादा है, इतनी सैलरीज नहीं होती हमारी। उसका मेहनत इसने सैलरी पे लेना भी नहीं है। सैलरी में किसने वजन के हिसाब से देखा जाए, गोश्त के हिसाब से देखा जाए तो 9.5 भी कम है। हाँ, वो कह रहे हैं जी वजन और वेट के हिसाब से देखूं तो 9.5 बहुत कम है, मगर अब महक पे डिपेंड करता है वो किस तरह से देखती है। नहीं, महक ने सैलरी से नहीं लेना, वो अभी फौरन अपने हस्बैंड को मैसेज करेंगी, मैनू ये बैल पसंद आ गया, चलो जाओ खरीद के ले आओ। तो देखते हैं क्या होता है। सर थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा ये बैल, बड़ा खूब है ना, जो भी खरीदे अल्लाह उसकी कुर्बानी कबूल करेगी हमारी तरह। ई कॉमर्स की बात करते हैं। अमेज़ॉन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अमेज़ॉन पर हर साल तकरीबन 1 मिलियन प्लस लोग हैं जो कि सेलर लिस्ट में शामिल होते हैं। दुनिया भर के सारिफीन इस प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करने को अब तरजीह दे रहे हैं। पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि तरजीहात हैं लोगों की कि इसको यूटिलाइज़ किया जाए। पाकिस्तान भी चंद माह पहले सेलर लिस्ट में शामिल हुआ है, जहाँ कोई भी अपना प्रोडक्ट फ़रोख्त कर सकता है। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म पर बतौर वर्चुअल असिस्टेंट प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट प्रमोशन जैसी खिदमात देकर भी पैसा कमाया जा सकता है। कैसे कोई पाकिस्तानी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पैसा कमा सकता है जो कि पहले अगर नहीं कमा रहा, या कोई अपनी अर्निंग को बढ़ाना चाहता है तो हाउ ही कैन डू दैट। पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्राइवेट इदारे नौजवानों को अमेज़ॉन में मुख्तलिफ किस्म की कोर्सेज़ करवा रहे हैं और उन्हीं में एक ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान भी है जिसके बानी है हुज़ैफ़ा अली। पाकिस्तानी नौजवानों को अमेज़ॉन से मुताल्लिक वो अब तालीम दे रहे हैं। आज हुज़ैफ़ा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव हर्ड कि आप बाहर थे और आपने यूनाइटेड स्टेट्स को गुड बाय कहा, पाकिस्तान आए, उसके बाद आपने इसमें काफ़ी काम किया। थोड़ा सा अपनी जर्नी से मुताल्लिक प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जी हाँ, मैं यूएस में काम करता था एज अ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। ओके। और दैट वाज अ डिफरेंट कंपनी, कम्प्लीटली डिफरेंट। मेरा बैकग्राउंड जो है वो आईटी प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री से ज़्यादा है, तो मैंने बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम किया था। बट आई स्पेंट लाइक 16 ईयर्स, 15-16 साल स्पेंड करने के बाद मैं थोड़ा सा फेडअप होने वाले सिलसिले में आने लगा था। मैंने कहा कि कुछ और ही करना है, अब ये प्रोग्रामिंग से दिमाग खप गया है। तो पाकिस्तान आने के बाद तो खैर हालात थोड़े से बड़े डिफ़िकल्ट थे क्योंकि कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफस्टाइल भी था, प्लस फाइनेंशियल्स भी बड़े डिस्टर्ब थे उस वक्त। तो कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए। अल्टीमेटली उसके बाद हमने 2017 में बिगिन किया इस पे काम करना अमेज़ॉन पे, क्योंकि मैं यूएस में रहा था तो मेरे सारे वो जो सेलर अकाउंट्स और ये सब चीज़ों का बड़ा एक स्टेबल सिचुएशन बनी हुई थी, मेरे पास सारी आईडीज़ मौजूद थी। तो हमने इस पे काम शुरू किया और इनिशियल तो खैर बड़ा डिफ़िकल्ट हुआ, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि उस वक्त हमारे जैसे लोग, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी सर्विसेज या ऐसे कंसल्टेंट्स अवेलेबल नहीं थे जो ईमानदारी से लोगों को बता सके कि जी आओ कैसे काम करना है। तो वो हम वही यूट्यूब से और दाएँ बाएँ से थोड़ा सा ढूंढ ढांड के चीज़ें और अपना एक्सपेरिमेंट भी किया, हिट एंड ट्रायल किया, काफ़ी सारे लॉसेस बर्दाश्त किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूरिंग मिड से लेके एंड का अगर हम कहें 2017 का जो पीरियड था वो ऐसा था कि जहाँ पे हमें सक्सेस नज़र आना शुरू हो गई थी कि अच्छा जी ये वर्क कर रहा है और इससे एक अच्छी इनकम एज अ पाकिस्तान में रहते हुए आप एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड एंड अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि हम कोई 50+ 100+ अमेज़ॉन अकाउंट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। मल्टीपल बहुत बड़ी टीम बन गई है, बहुत सारे कोई मेरे पास कोई हमारे प्लेटफॉर्म पे 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और कोई ऑलमोस्ट 1.5 लाख के करीब जो है कोई मेंबर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से सीखते हैं जो हमारा वीडियो सक्सेस कैंप का प्रोग्राम है उससे। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। ग्रेट। अच्छा, उसके अलावा इनोवेशन की जब हम बात करते हैं तो आपने बेसिकली एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस करा जिससे रेवोल्यूशनाइज हो गया ये सेक्टर। ये FBA मॉडल था क्या?
FBA stands for Fulfilled by Amazon. ये तो एक Amazon की सर्विस है जहाँ पे ये आपको यानी कि सेलर्स को ये फैसिलिटी देता है कि जी आप अपनी इन्वेंट्री हमारे पास हमारे जितने भी वेयर हाउसेज हैं वहाँ पे स्टॉक कर दें और हम खुद ही हमारी टीम जो है इसे फुलफिल करेगी कस्टमर्स को। तो Amazon ये मेक श्योर करता है कि सेलर को भी तकलीफ ना हो और कस्टमर को ऑन टाइम डिलीवरीज मिल जाएं, ताकि यही एक मेन बुनियाद है। Amazon को ऊपर आने के अंदर सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट जो फैक्टर है वो है कस्टमर सर्विस। तो एक तो ऑन टाइम डिलीवरी, फिर रिटर्न्स, बड़ा इजी उन्होंने सिलसिला ये सारा बना दिया। मैंने जो पाकिस्तान में एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था उससे कहते हैं होलसेल FBA। होलसेल FBA का मतलब ये होता है कि हम वो सेल करते हैं जो ऑलरेडी सेल हो रहा है अमेज़ॉन पे। हम कोई री इन्वेंट नहीं करते व्हील के जी आप एक अपना नया प्रोडक्ट बनाएं, कुछ ब्रांड उसके ऊपर अपना नया लोगो लगाएं और कम्प्लीटली, क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर इतने हाई हैं कि एक रेगुलर पाकिस्तानी जो है जिसके पास कोई कुल मिला के अगर 30-40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है तो वो तो वैसे ही खप जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो हम कोशिश ये करते हैं कि वो सेल करें जो ऑलरेडी सेल हो रहा है, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाती है प्रिटी मच, और हम स्प्रेड आउट कर देते हैं मल्टीपल SKUs यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर उसे स्प्रेड कर देते हैं जिससे आपका रिस्क फैक्टर वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो ये होलसेल FBA का बिजनेस मॉडल है। और अगर कोई शख्स अमेज़ॉन से कमाने की कोशिश कर रहा है तो क्या चीज़ ऐसी है जो कि सीखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसे? हमारे बिज़नेस मॉडल जो होलसेल FBA का बिज़नेस मॉडल है ना, ये कंपैरेटिवली बहुत आसान है, काम करना बहुत आसान है। लेट्स से आप एक टिपिकल हम बात करें पाकिस्तानी की, तो एक शख्स कहता है कि जी मुझे कोई दुकान खोलनी है, कोई स्टोर ओपन करना है, तो वो क्या करेगा, सिंपल एक कहीं अच्छी लोकेशन पे दुकान बनाएगा, सेटअप करेगा और अपनी जो मार्केट है, जो एरिया है, उसके हिसाब से इन्वेंट्री लोड करेगा कि जी मैंने ये भी रखना है, मैंने ये भी बेचना है, मुझे फला फला। अगर जनरल स्टोर की बात करें तो वो फिर चाय पत्ती भी बेच रहे हैं, दूध भी बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। तो इसी तरह आप यही कंपेयर कर लें कि जी ये एक ऑनलाइन इसी तरह की आपकी दुकान है और आपने यहाँ पे इन्वेंट्री लोड करनी है। द ओनली कंसर्न इज़ कि आप ऑथराइज्ड होने चाहिए वो ब्रांड और वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो जो क्वेश्चन है कि क्या करना चाहिए, तो दो मेजर चैलेंजेस हैं जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो है एक तो प्रोडक्ट हंटिंग आपने सीखनी है, उसको कैसे एनालाइज करना है, और दूसरा ब्रांड्स के साथ ट्रेड अकाउंट्स बनाना, यानी कि आप ताकि उन ब्रांड्स के साथ डायरेक्टली सोर्स कर सकें। अच्छा, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये कि पाकिस्तानी स्पेशली जो लोग काम करना चाह रहे हैं इस जगह पर, उन्हें कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ को लेकर आना है हमने यहाँ पे, क्या चीज़ हमारी किस तरह फ़रोख्त होगी, कितनी तादाद में हो सकती है? अच्छा, इसके लिए कुछ टूल्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं कीपा है, हीलियम 10 है और बेशुमार और भी टूल्स हैं, कुछ पेड हैं, कुछ फ्री भी आपको मिल जाते हैं। तो ये टूल्स की मदद से हमें पता चल जाता है कि अच्छा जी ये प्रोडक्ट चल रही है, इसकी इतनी सेल्स हैं, किस तरह के कीवर्ड्स या किस तरह का डाटा आपको चाहिए, किस तरह आपने बेसिकली कहते हैं ना वो जो टाइटल आपने लिखना है तो कैसे लिखना है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको टूल्स मदद करते हैं, तो आपको तकरीबन अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ जी ये अगर लेट से पाकिस्तान से कोई आप डुवे सेट्स या बेड शीट्स या इस तरह की कोई हैंडमेड चीज़ जैसे कि ट्रू, तो वो उन चीज़ों की सारी तफसीलात हमें पहले ही नज़र आ जाती हैं। उससे हमें ये पता चल जाता है कि अच्छा जी ये प्रोडक्ट इट्स गुड टू गो और इट्स अ नो गो। और क्या चीज़ ऐसी है जो नहीं करनी कि आप ब्लॉक ना हो यहाँ से? लोग ड्रॉप शिपिंग बड़ा करते हैं, ड्रॉप शिपिंग की वजह से मैं डिस्करेज करता हूँ इसीलिए लोगों को। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास उसका स्टॉक नहीं है और आप उससे फिर भी वहाँ पे कर रहे हैं कि आप खरीद लीजिए, तो ये ना कीजिए, ये हरगिज़ भी ना करें। मैं बड़ा हाईली हालांकि मैंने शुरू में इनकरेज किया था, आई मीन 2018 में, बट एट दैट टाइम अमेज़ॉन बहुत लीनियंट था, चला देता, और अब नहीं है ऐसा, अब नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि क्योंकि ज़रा आप भी इससे मुतालिक ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, बहुत से और लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। एक तो ये कि मिनिमम किस इन्वेस्टमेंट के साथ कोई शख्स आ सकता है, कितना उसे तजर्बा चाहिए होगा, ट्रेनिंग कितने अरसे की होती है कि वो सीख लेता है, और फिर वो कितना मिनिमम कमा सकते हैं, एवरेज कितना कमा सकता है? जी, तो देखें ट्रेनिंग के लिहाज से एक तो हमने पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये किया कि जो हमारी बड़ी एडवांस पेड ट्रेनिंग थी उसको हमने फ्री कर दिया। अच्छा, पाकिस्तानियों के लिए वो हमने बड़ी कोशिश की कि हम पहले लालच भी आया कि जी चलो बिक रही है तो व्हाई नॉट कंटिन्यू सेलिंग इट, बट अगेन फिर वो थोड़ा सा ईमान की भी एक वो थी साथ साथ चल रही थी, तो वो हावी हुआ और मैंने कहा नहीं जी इसको फ्री कर देते हैं ताकि लोग सीख सकें। तो वीडियो सक्सेस कैंप उसे कहते हैं। ये कोई भी हमारी वेबसाइट पे जाए ecomsuccess.pk,
/VSC ویڈیو سکسیس کیمپ کا VSC اگر یہ لکھتے ہیں تو یہ وہاں پر انہیں وہ ٹریننگ کا وہ مل جاتا ہے, ساری ڈیٹیلز مل جاتی ہے, اور انہیں صرف اپنا NIC شناختی کارڈ یا پاسپورٹ اپلوڈ کرنا پڑتا ہے جسٹ ٹو میک شیور کہ وہ پاکستانی. ہمیں یہ میک شیور کرنا ہے تاکہ فارینرز یا جیسے انڈینز اور بنگلہ دیشی, اور کیونکہ یہ بھی اردو سمجھ لیتے ہیں پریٹی مچ, تو تاکہ ان کو ایکسیس ہم ابھی نہیں دینا چاہتے. دیٹس آور پالیسی فار ناؤ. تو یہ ان کو فری آف کاسٹ مل جاتا ہے, یہ حاصل کر سکتے ہیں. پیڈ ٹریننگز اور ہیں ہماری, لیکن وہ جسٹ بیکاز بیسڈ آن مینٹورشپس, ادروائز تو وہ سارا ایڈوانس اس میں موجود. اوکے, آئی ہیو لاسٹ منٹ, اگر آپ مجھے کوئکلی ایٹسی پلیٹ فارم سے متعلق شیئر کر سکیں. ایٹسی ایک ڈفرینٹ مارکیٹ پلیس ہے جو پاکستان میں انٹروڈیوس اسے بھی میں نے ہی کرایا تھا اور 2018 میں ہی کروایا تھا. ایٹسی پہ ہینڈ میڈ پاکستانی لوکل آئٹمس ملتی ہیں. میں کبھی ذکر بھی کر رہی ہوں. تو پاکستان میں تو بے تحاشا ایسی پروڈکٹس موجود ہیں, اور زیادہ تر یہ پسند بھی باہر کی جاتی ہیں. ہینڈ میڈز, آپ کے نیکلیس, دوپٹہ, شرٹس وغیرہ, اور وومن امپاورمنٹ ہوتی ہے اس سے پاکستان بہت زیادہ بہت زیادہ. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور ہمارے ٹرینرز ہیں ڈفرینٹ جو کہ ان میں لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں. انفیکٹ ہم ٹریننگ کے بیچنے کے علاوہ ایک اور کام بھی کرتے ہیں جس میں ہم یہ جو ہینڈ میڈ بنانے والے لوگ ہیں ہمارے, جو تھوڑے سے نچلے طبقے میں بھی ہیں, جن کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہے فائنانسز کو بھی مینیج کرنا, ہم ان کو بھی ہیلپ کرنے کے لیے ان کی پروڈکٹس خود سورسنگ کر رہے ہیں. تو یہ ابھی پسند کی جاتی ہیں اتنی زیادہ چیزیں پاکستان کی؟ عموماً لوگ باہر بھی منگواتے ہیں نا بیگ اسپیشلی جو ہوتے ہیں. یورپ سائڈ پہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں کمپٹیشن نہیں ہے, اس لیے پروفٹس بڑے ہائی ملتے ہیں. زبردست. تو یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے. اب بہت سی ایسی خواتین جو کہ ہم دیکھتے ہیں وہ انٹیریئر سندھ ہو یا پنجاب کے علاقے اور بلوچستان کے پی آزاد کشمیر گلگت بلتستان, وہ جو ہینڈ میڈ کرافٹس کی ہم بات کرتے ہیں وہ یہ خود بھی پروکیور کر کے آگے بیچتے ہیں, وہ خود بھی ایٹسی کے ذریعے اپنا سامان جو وہ بیچ سکتے ہیں, پسند کیا جاتا ہے, وہ خود کمائیں گی تو اپنے پیروں پہ کھڑیں گے. تھینک یو ویری مچ. حذیفہ ساتھ موجود تھے, آپ گفتگو کرتے ہیں. نعرے لگ رہے ہیں, وعدے ہو رہے ہیں اور دعوے بھی کیے جا رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے لگے ہیں. آزاد کشمیر میں تقریباً 32 لاکھ سے زائد رائے دہندگان 25 جولائی کو 5 سال کے لیے اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے. ان انتخابات میں پیپلز پارٹی PTI اور مسلم لیگ نواز کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے, جبکہ مرکز میں تو PTI کی گورنمنٹ بیٹھی ہے, جس کی وجہ سے ان کے امیدواروں کو دیگر جماعتوں کے امیدواروں پر برتری اچھی خاصی حاصل ہے. لیکن عوام کی نظر میں کون سا امیدوار الیکشن جیت سکتا ہے؟ یہ کون سا امیدوار ایسا ہے جو کہ ان کے علاقے کے مسائل حل کر سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. اور جب علاقے کے عوامی مسائل کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون ہے ایسا شخص جو کہ مسائل پر زیادہ توجہ دے سکتا ہے, اور کون ہے جو کہ وعدوں کو نبھا سکتا ہے. شعیب جو ہیں آزاد کشمیر گئے اور انہوں نے جا کر وہاں پر عوام کی رائے جاننے کی کوشش کی. آزاد کشمیر الیکشن سے متعلق یہ پہلا سیگمنٹ ہے جو ہم آپ کو دکھائیں گے, اور آگے چل کے ہم ڈیلی بیسس پر آپ کو یہ سیگمنٹس دکھاتے رہیں گے کہ وہاں پر الیکشن کی صورتحال ہے کیا. تو دیکھتے ہیں کہ شعیب جب گئے اور ملے لوگوں سے تو ان کی کیا رائے تھی. گڈ مارننگ فرام آزاد کشمیر. 25 جولائی مارکا ہے, انتخابات ہیں یہاں پر, 45 حلقے ہیں, اور ان میں سے کئی حلقے ایسے ہیں جہاں پر کڑا تگڑا مقابلہ ہے کینڈیڈیٹس کے درمیان. ہم اس وقت موجود ہیں باغ ڈویژن میں, اور جب بات ہو رہی ہے باغ کی تو بڑا خوبصورت باغ, بڑا پیارا علاقہ. اس وقت بھی جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں جو گھروں کی چھتیں ہیں ان کے رنگ مجھے بڑا اٹریکٹ کر رہے ہیں. موسم بھی پیارا ہے, یہ پورے ملک میں گرم موسم, یہاں کا موسم قدرے بہتر. کل بارش ہوئی تھی, موسم اور شاندار ہوا تھا, پارا گرا تھا, لیکن انتخابات کی وجہ سے ماحول ہمیں گرم دکھائی دے رہا ہے, پارا چڑھتا چلا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں 25 جولائی کتنا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے. دیکھتے یہ بھی ہیں کہ کون جیتتا ہے, PMLN پیپلز پارٹی یا پھر پاکستان تحریک انصاف. چونکہ ماضی میں یہ ہوتا آیا ہے کہ جس کی وفاق میں حکومت وہی یہاں پر بناتا ہے حکومت. ایسے میں PTI کے وہ کینڈیڈیٹس جو یہ امید رکھتے ہیں کہ جیتنے کے بعد وہ PM کے کینڈیڈیٹ ہوں گے, PM بننے کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں وہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم عوام میں جائیں گے تو ذرا سوال کریں گے ماضی میں حکومتیں بنانے والوں نے یہاں پر کیا کیا, اور اب جن سے امید باندھ لی ہے عوام نے, کیا امید باندھ لی, کیا کرنے جا رہے ہیں وہ کینڈیڈیٹس, کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یہاں سے جیتتی ہے تو کیا کرے گی, یہاں پر پوٹینشل کتنا ہے, کام کیا کیا ہو سکتا ہے. جاب کے مسائل ہیں, ڈیولپمنٹ کا کام ہونا ہے. کئی علاقے ایسے جہاں پر سڑک نہیں جاتی. ٹورزم کو اگر فروغ دینا ہے, ٹورسٹ کو پروموٹ کرنا ہے تو ٹورسٹ کو یہاں فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. راستے, ہوٹلز اور جو سہولیات ہیں اس پر کام کرنا ہوگا. کیا
جو بھی حکومت یہاں پر بنے گی وہ اس پر سنجیدہ ہے. اس کی بات کریں گے, کچھ امیدواروں کے انٹرویوز کریں گے اور عوام میں جائیں گے, ان کی رائے آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. اسٹے ود می. کشمیر میں پارٹی پرچموں کی بہار ہے چونکہ انتخابات کا موسم ہے, لیکن ہم اس جگہ پر ہیں جہاں پر سارے پرچم ایک ساتھ ہیں. چونکہ اسٹال ہے, یہاں پر لوگ آتے ہیں, کوئی آتا ہے بائک پر پرچم لگانے کے لیے, کوئی آتا ہے بیج لگانے کے لیے, کوئی ٹوپی لے کر یہاں سے جاتا ہے. تو ذرا سوال یہ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ کس پارٹی کے سپورٹرز یہاں پر آ رہے ہیں اور پرچم خرید رہے ہیں, ٹوپیاں لے کر جا رہے ہیں, بیج لے رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی. کتنے دن سے آپ نے اسٹال لگایا ہے؟ تقریباً 10 دن ہوئے. 10 دن ہو گئے. 10 دن میں مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ کون سا جھنڈا بکا؟ PPP کا. پیپلز پارٹی کا؟ پیپل پارٹی کا. کتنے جھنڈے بکے ہیں آپ کے پاس؟ تقریباً بہت زیادہ بکے, 100 سے زیادہ بکے. اور پیپلز پارٹی کے بعد کس کے جھنڈے بکے ہیں؟ PTI کا. PTI کے کتنے جھنڈے بکے؟ تھوڑے بکے ہیں. کتنے تھوڑے؟ کیونکہ اس نے خود اپنے جھنڈے لے کے آئے نا, تو وہ سارے بندوں کو مفت دے رہا ہے. اچھا, PTI والے خود مفت جھنڈے بانٹ رہے ہیں؟ ہاں بالکل. بلاول نہیں لے کر آئے جھنڈے؟ نہیں وہ نہیں لے. پیپلز پارٹی والے نہیں لائے جھنڈے؟ وہ لے کے آئے. وہ بھی لائے ہیں؟ ہاں وہ بھی لائے. انہوں نے چھوڑ دیا سپورٹر کو, جاؤ خود خریدو. ہاں بالکل. ہمارا ایسے ہی ہے, سپورٹر کا خیال ہی کوئی نہیں پیپلز پارٹی کو. کیوں نہیں ہے لیکن خود خریدنے پڑ رہے جھنڈے ان کو. تو خاص بندوں کو دے رہا ہے نا. PTI والے ہر عام خاص کو دے رہے ہیں. وہ بھی اس طرح کرتا ہے نا. PTI والے سب کو دے رہے ہیں. ہر بندہ کو ادھر نہیں آتا ہے نا, ادھر جو خاص بندے ہیں اس کو اسٹیکر بھی دے رہا ہے, ادھر سے جھنڈی بھی مل رہا ہے. PTI والے سب چیزیں دے رہے ہیں. ہاں پیپلز پارٹی والے نہیں دے رہے. وہ بھی دے رہے ہیں. اچھا, پھر بھی لوگ خرید رہے ہیں. پھر بھی لوگ خرید رہے ہیں. وہ دے رہے ہیں پھر بھی لے رہے ہیں. ہاں پھر بھی لے رہے ہیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. دو بزرگ ہیں, ان سے ذرا گفتگو کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس حکومت بنتے یہاں پر دیکھا ہے وہ کیا رائے رکھتے ہیں انتخابات سے متعلق, کس کو ووٹ وہ دے رہے ہیں, کیوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہے. کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ ابھی انتخابات میں ووٹ آپ کس جماعت کو دیں گے؟ ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں. ہم ووٹ جماعت اسلامی کو دیں گے. جماعت اسلامی. آپ بھی ووٹ جماعت اسلامی کو؟ جماعت اسلامی کو دیں گے. اچھا سر, مجھے تھوڑا سا بتائیں جماعت اسلامی نے ماضی میں یہاں پر کیا کام کیا؟ 2005 میں جو زلزلہ ہے, کسی تنظیم نے, حکومت نے بھی, آزاد کشمیر میں حکومت نے ایک پیسے کا کام نہیں کیا. جماعت اسلامی نے تمام لوگوں کا راشن, ان کے ہر قسم کی سہولت, ان کا مدد. ابھی عید قربانی آ رہی ہے, غریبوں کا قربانی کا گوشت دیں گے. ہر مشکل کی گھڑی میں لوگوں کے کام آتے ہیں. سر مجھے آپ بھی بتائیے گا کہ اگر جماعت اسلامی نے اتنا اچھا کام کیا, زلزلے کا وقت ہو یا اس کے علاوہ کوئی آفت کی بات ہو, عوام کی خدمت کی بات ہو, اتنا کام جماعت اسلامی نے کیا, تو ووٹ کیوں نہیں ملتا, حکومت میں کیوں نہیں آتے؟ ووٹ اس لیے نہیں ملتا ہے کہ لوگوں کا, یہ جو ہمارے لیڈران ہیں نا, انہوں نے ان کی ایسے راستے پہ لگایا ہوا ہے کہ اگر ہمیں ووٹ نہ دیا تو ہم, آپ کو روڈ کون لا کے دے گا, آپ کو یہ اپنا بجلی کا کھمبا کون لگا کے دے گا, آپ کو یہ روڈیں اور یہ راستے پکے کروا کے اسکول بنوا کے کون دے گا. بزرگوں سے بات کی, ان کی رائے آپ کے سامنے رکھی. نوجوان کیا سوچ رکھتے ہیں, کیا رائے رکھتے ہیں انتخابات سے متعلق, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کس جگہ سے ہیں آپ؟ جی میں عباس پور سے تعلق ہے. کون سا حلقہ ہے یہ LA18 پونچھ ہے. LA18. آپ بھی اسی حلقے سے؟ نہیں, میں درکوٹ سے ہوں, غربی باغ حلقہ LA14. LA14. جی جی ٹھیک ہے. پہلے مجھے آپ بتائیں الیکشن میں ہوا کس جماعت کی چل رہی ہے؟ انشاءاللہ PTI. اچھا, پوری امید ہے؟ جی جی انشاءاللہ. ووٹ PTI کے کینڈیڈیٹ کو دیں گے؟ جی انشاءاللہ. مقابلہ سخت لگ رہا ہے یا لگتا ہے آرام سے جیت جائیں گے؟ آرام سے جیت جائیں گے انشاءاللہ. آپ مطمئن ہیں جو پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس سے, یعنی وفاق میں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس سے مطمئن ہے؟ جی انشاءاللہ. کیا ایسا کام ہے جس سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی کہ ہمارے لیڈر ہیں عمران خان, وہ آئے تو انہوں نے احتساب کا کام شروع کیا. یہ بہت ضروری تھا. ان لوگوں نے 70 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے, ٹھیک ہے, تو احتساب ان لوگوں کا ہونا چاہیے. احتساب ہو گیا؟ ابھی جاری ہے, انشاءاللہ ہو رہا ہے. پیسہ واپس آ گیا؟ آئے گا. جابز آ گئی؟ آئیں گی. گھر بن گئے؟ بنیں گے. بے روزگاری ختم ہو گئی؟ جی ضرور انشاءاللہ. ہوگی یا ہو گئی؟ ہوگی انشاءاللہ. غربت ختم ہو گئی؟ ہو جائے گی. ہوا کیا ہے؟ امید ہے, پوری امید ہے ہم انشاءاللہ. صرف امید ہوئی ہے؟ جی جی صرف امید ہوئی ہے. امید پہ قائم ہے ہم. اس امید کی وجہ سے ووٹ دیں گے. یہ دنیا امید پہ قائم ہے. ٹھیک ہے. اپنے کینڈیڈیٹ سے متعلق بتائیں, مطمئن ہے ٹکٹ جس کو ملا اس سے ہی ملنا چاہیے تھا؟
जी मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ और मैं समझता हूँ कि जो टिकट गरबी बाग हल्का 14 जुलाई वो मेरठ के ऊपर मिला है और वो मेजर रिटायल लतीफ़ खलील को मिला है। वो तकरीबन पिछले 20 साल से उस हल्के की पसमानगी के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इमरान खान और रशीद सुल्तान महमूद चौधरी ने उनको टिकट देकर मेरठ, और जो इमरान खान मेरठ की बात करता है उसको मैंने समझता हूँ कि इसको इंडोर्स किया है और इंशाल्लाह गरबी बाग हल्का के 14 में इंशाल्लाह तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का नाम आपने लिया, मैंने सुना है ग्रोह बंदी है, बैरिस्टर सुल्तान का एक ग्रोह है और तनवीर इलियास साहब का एक ग्रोह, ऐसा है? नहीं ऐसी बात नहीं है, ज़ाहिर बात है जहाँ पे मेन पावर्स होती हैं, पावर पॉलिटिक्स होती है, वहाँ पे बाज़ इशू भी होते हैं, लेकिन सबका हतमी फैसला ये है कि इमरान खान जिसको मुंतखब करेंगे उसी के ऊपर इंशाल्लाह सारे जमा होंगे। बात कर रहा हूँ सैयदा नाइला साहिबा की, मोबिलाइज करते हैं ख़वातीन को, वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वर्किंग हियर इन आज़ाद कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने सुना है आपके बारे में और मैं देख भी रहा हूँ कि जिस तरह आप कॉर्नर मीटिंग्स भी अरेंज करवा रही हैं, ख़वातीन को मोबिलाइज कर रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ख़वातीन उनका बड़ा अहम रोल होता है माशरे में, और जब बात हो इलेक्टोरल प्रोसेस की, जब बात हो इलेक्शंस की, भले ख़वातीन कैंडिडेट्स बहुत कम हमें इस इंतखाब में नज़र आ रही हैं, बट स्टिल ख़वातीन का रोल है, आप उन्हें मोबिलाइज़ करें। थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, किस तरह आप मोबिलाइज़ कर पा रही हैं? तो ख़वातीन बेसिकली हर एक जो सेक्टर है वहाँ पे आपको मिलेंगी और उनका मोबिलाइज़ होना ज़रूरी है। जहाँ पॉलिटिकल जो आप कह रहे हैं, तो पॉलिटिक्स में ये बात ज़रूरी है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर या सपोज़ करें कि ज़िला बाग के अंदर बहुत कम ऐसा है एक कॉन्सेप्ट के जिसको मतलब जो डेवलप होने में थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि ख़वातीन इतनी एक्टिव हों। लेकिन चूँकि मेरा थोड़ा सा ये है कि मेरा घराना चूँकि सियासी था, मेरे फादर सियासी थे, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो है यूँ समझ लें कि एक्टिव मेंबर थे, फ्रंट लाइन के मुजाहिद अव्वल के साथियों में उनका शुमार था। तो इस तरह से यह है कि मैंने शुरू से ही एक सियासत को अपने घर में अपने साथ अपनी परवरिश के दौरान, अपनी ग्रूमिंग के दौरान अपनी सियासत को देखा और इस तरह मेरे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं हो रहा। अब आगे ये है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंने ज्वाइन किया है इसीलिए क्योंकि खान साहब की जो पॉलिसी है और जो थीम लेके वो चल रहे हैं इंसानियत की खिदमत के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करने के लिए और आज़ाद कश्मीर की जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर जिस तरीके से उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपने आप को और हमें रिप्रेजेंट किया है, हमारा वकाला किया है, तो वो चीज़ उसने हमारा दिल जीता है। सच्ची बात मैं आपको बताऊँ। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में जब विज़िट कर रहे हैं, लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आया और कुछ ख़वातीन भी आ रही हैं, आगे चल कर उनसे बात भी करते हैं कि ख़वातीन क्या सोचती हैं इलेक्शन प्रोसेस को लेकर और जो यहाँ पर अब वोटिंग का अमल होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे प्लीज़ पहले आप बताएं कि अब कुछ दिन बाकी हैं और इंतखाबात हैं यहाँ पर, पहले तो ये बताएं, पूछ लूँ अगर आपसे, वोट किसको देंगी? लाजमी बात है, जो कंडीशन जा रही है मुल्क को कौम की, तो इस वक्त पीटीआई को ही देंगे, खान साहब को देंगे। अच्छा जी इंशाल्लाह। यहाँ की ख़वातीन ने फैसला कर लिया है या आपको लगता है कि नहीं सिर्फ ये कुछ ख़वातीन की सोच है अभी? नहीं, मोस्टली तकरीबन 97% ये यकीन से कह सकते हैं कि पीटीआई। आपके अपने हल्के की बात करें? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यानी ख़वातीन जब मिल बैठती हैं तो बात खान साहब की होती है? खान साहब की होती है, बिल्कुल डे नाइट उन्हीं की बातें होती हैं। अच्छा, आप भी यही राय रखती हैं? खान साहब से मुतमईन है यहाँ के सब लोग की तरक्की के लिए वही काम करते, एक जिम्मेदार और ईमानदार बंदे वही साबित हो रहे। अच्छा, तो हम उनकी फेवर करते। ये ख़वातीन के यहाँ पर जनरली इशूज़ क्या हैं? तालीम के हैं, सेहत के हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, क्या मसाइल हैं? जॉब्स के भी हैं ज़्यादातर। अच्छा, हेल्थ के थे तो वो तो चलो, और बस यही प्रॉब्लम। खातून यहाँ की जॉब करना चाहती है? जी करना चाहती जी। उसके लिए मौके नहीं है? जी नहीं। आपको लगता है कि आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से सीट्स लेती है, जीतती है, हुकूमत बनाती है, तो ख़वातीन के लिए जॉब्स के मौके होंगे? जी इंशाल्लाह। इलेक्शन से मुताल्लिक की मज़ीद बात करते हैं। ज़हूर साहब साथ मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। इमरान खान ने जब कहा कि मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा, उन्होंने बनकर दिखाया? जी, उन्होंने खुलकर बात की है। इससे पहले कभी बात नहीं हुई? 73 सालों में कभी किसी हुक्मरान ने ऐसी बात नहीं की है जो उन्होंने की है। इन्हीं खान साहब ने जो कह दिया एक बार कि मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ, और उन्होंने आवाज़ जो बुलंद की फॉरेन ऑफिस ने की, गवर्नमेंट ने की, ये एक ऐसी चीज़ रही जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कश्मीर में जितने लोग हैं वो हम नज़र आ रही है तारीफ़ करते हुए इस बात की, मैक्सिमम मेजॉरिटी हमें, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवा यहाँ दिखाई दे रही है। यही वजह? बिल्कुल यही बात है। कश्मीर के लिए वो बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। मेरा तो अपना आइडिया यही है कि ये अपने आइंदा इलेक्शन से पहले ये महंगाई भी बिल्कुल कंट्रोल कर लेगा और मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा।
बदकिस्मत बेटों की बात करते हैं जिन्हें मौका मिला दुनिया में जन्नत कमाने का, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने नसीब में शायद दोज़ख की आग लिखवा ली। हम कहते हैं कि माँ बाप में से कोई एक भी अगर हमारे साथ मौजूद हो ना, तो उनकी इतनी खिदमत करें कि आप शायद ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि क्या वाकई अल्लाह ताला ने इस खिदमत पर दुनिया में आपके लिए जन्नत लिख दी है। क्योंकि माँ बाप की जो खिदमत जब हम करते ना, हम एक रात का कर्ज़ भी नहीं चुका सकते। और ये तो वो बेटे हैं जो कि पढ़ लिख कर शायद माँ ने सोचा होगा कुछ बन जाएंगे, बाप ने सोचा होगा कुछ बना दूंगा, इसलिए मेहनत मजदूरी की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। और जब शुएब हम बात करते हैं ना बेटों की, तो हमारे मुआशरे में ये अलमिया है कि दुआएं मांगते हैं ना बेटों के लिए कि अल्लाह बेटा दे, बुढ़ापे में सहारा बनेंगे। लेकिन जिन बेटों का हम जिक्र करें, ये सहारा नहीं, ये शायद मैं ये कहूँगी, मुझे इंतहाई माजरत के साथ ही कहना पड़ा है कि ये सहारा नहीं, बल्कि ये ऐसे बदबख्त बेटे हैं, बदनसीब बेटे हैं जिन्होंने अपने लिए दुनिया में वो घर बनाया है जो कि जिसका ठिकाना आखिरत में दोज़ख का गहरा हिस्सा है। बेशक। और जब बात हो औलाद की, तो अब तो महक बहुत एग्जांपल्स हमारे पास हैं कि अब बेटियां सहारा बनती हैं, बेटियां माँ बाप को नहीं छोड़ती, बेटियां ताकत बनती हैं, बेटियां माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद करती हैं। अब जब बात इनकी हो रही है, इनकी बेटी नहीं थी, वरना मैं यकीन से कह सकता हूँ ये बेघर ना होती। रिफ़तुन्निसा आज हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे प्लीज़ बताइएगा अपने शौहर से मुताल्लिक इंतकाल कब हुआ और फिर अब आप अकेली रहती हैं? लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। इससे पहले वो बिज़नेस करते थे और मेरे 4 बेटे हैं माशाल्लाह। उनको मैंने ग्रो अप किया है और पढ़ाया है और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करें। और मैं अपने घर में रहती हूँ, अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है घर, लेकिन मैं और मेरे बच्चे उसी में रह रहे हैं। तो एक बेटा शादीशुदा है, वो अलग होता है, अलग रहता है, सेपरेट रहता है। तो ये तीनों बच्चे मुझे सपोर्ट करें और वो बच्चा भी मुझे सपोर्ट करे फाइनेंशियली, मॉरली भी। माँ जी, आपने फाइनेंशियली सपोर्ट की बात की, तो मैं पूछना चाहूँगी कि क्या बच्चे या आपके बेटे जो हैं, जो पढ़ लिख गए हैं, कोई खर्चा नहीं देते, किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते? अभी वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। सिर्फ अहमर जो बच्चा है ये मुझे सपोर्ट करता है अच्छी तरह से, मेरी लुक आफ्टर करता है, मेरी मेडिसिन, मेरी हर तरह की मेरी खिदमत करता है और मेरी हर तरह से मेरी ग़िज़ा दवा सबका इलाज का मेरा लिहाज रखता है। आपको क्या लगता है, एक के तो चलो शादी हो गई, बट फिर भी ज़ाहिर जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी है और माँ बाप की जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी है और इस ऐसे तरीके से अंजाम देनी चाहिए। आपको लगता क्या है, ये क्यों अहमर के अलावा बाकी जो बेटे हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल क्यों हैं? उनको ये सोचना चाहिए बच्चों को कि एक दिन हमारे ऊपर भी ये स्टेज आएगी, हमारी एज भी ऐसी हो जाएगी कि हम भी अपने बच्चों के मोहताज होंगे, कि वो हमारी फाइनेंशियली भी खिदमत करें, हमारी फिज़िकली भी वो हमारी खिदमत करें, हर तरह से जैसे हमने उनके साथ की थी। और उन्हें कभी हमने महसूस नहीं होने दिया कि तुम्हें ये चीज़ ज़रूरत है। हम खुद ब खुद उनको सपोर्ट करते थे, प्रोवाइड करते थे, तो वो भी हमें प्रोवाइड करें हमारी ज़रूरत की चीज़ें। हमें ज़रूरत है पैसे की, हमें ज़रूरत है उनकी खिदमत की। हाथों से मैंने अपने बच्चों को पाला है, मैंने उनको नौकरों के हवाले नहीं किया, मैंने खुद उनकी खिदमत की है। तो वो भी इसी तरह से करें, तो क्यों नहीं करते? क्या सोसाइटी ने उनको इतना कर दिया है या हम डिग्रेड हो गए? हम क्यों डिग्रेड हो गए उनकी नज़र में? और इंतहाई दुख की बात ये तो है माँ जी कि शायद अब हमारे मुआशरे का ये अलमिया बन गया है कि जब बच्चे देखते हैं कि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद अब उनकी ये जिम्मेदारी नहीं रही है। आपकी अदालत से दरख्वास्त क्या है? जिस खर्चे की आप बात करें उस हवाले से जो आपने अदालत में दरख्वास्त की है, मैं उससे मुताल्लिक भी जानना चाहूँगी। मैं कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इनको प्रेस करे कि वो मुझे मॉरली और फाइनेंशियली सपोर्ट करें, क्योंकि वो सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी इतनी इनकम है। जो लास्ट वन बचा है उसके चौथा बच्चा भी आने वाला है इस दुनिया में, तो अगर वो 4 बच्चों को और बीवी को और अपने ससुराल को खिला पिला सकता है तो माँ को पीछे क्यों फेंका हुआ? क्या वजह है?
माँ को क्यों नहीं वो एक्सेप्ट करा कि ये मेरी माँ है, क्या उसे भूल गया कि मैंने उसे ग्रो अप किया था। और इन सब बच्चों के लिए मैंने एक से एक बढ़कर डिफ़िकल्टी सही है इस दुनिया में। इनका बाप तो एक बीमार आदमी था, तो मुझे मर्द बनकर उनके साथ निभाना पड़ा। बिल्कुल, माँ की तो जब बात हो तो माँ की एक रात का जागना, इसका भी हम हिसाब नहीं दे सकते, इसका भी हम कुछ नहीं कर सकते, इतनी सख्त ही नहीं होती। मैं फिर भी आपसे जानना चाहूँगा, इन हालात को देखने के बावजूद बच्चे अगर सपोर्ट नहीं कर रहे अहमर के अलावा, फिर भी जब बेटों का ख्याल आपके दिल में आता है तो बेटों के लिए आप दुआ करती हैं अल्लाह से, बेटों के लिए कोई बात करती हैं? क्योंकि ज़ाहिर है माँ फिर भी बद्दुआ नहीं देती। दुआ में मैं अल्लाह ताला से इनके लिए नेकी और हिदायत मांगती हूँ और इनके लिए मग़फ़िरत मांगती हूँ, और सबके बच्चों के लिए, सबके बच्चे मेरे ही बच्चे हैं, तो मैं उनको भी अपने बच्चों की तरह से ही देखती हूँ और सबके लिए नेकी और हिदायत का रास्ता मांगती हूँ अल्लाह ताला से। अल्लाह हिदायत दे, ये दुआ आप मांगती हैं तो हम भी कहते हैं अल्लाह हिदायत दे। बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी आप। ये बड़े दुख की बात है, बल्कि ये बड़े शर्म की बात है कि हम उस माशरे से हैं जहाँ एक माँ को अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है अपने हक़ के लिए। जब एक माँ को अदालत जाना पड़ता है ये कहने के लिए कि मेरे बेटे मुझे कुछ देते नहीं है, खर्च नहीं देते। ये बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है, बड़े शर्म का मकाम है हमारे लिए। बढ़ते हैं आगे, पानी की बात कर लेते हैं। पानी एक नेमत है, लेकिन अगर वो पानी सही हालत में ना मिले तो जहमत बन जाता है। आज हम बात करें बलूचिस्तान की, जहां साफ़ पानी की अदम दस्तयाबी कई अमराज को जन्म दे रही है, जिसमें सर फहरिस्त है हेपेटाइटिस। हालिया रिपोर्ट से ये मालूम हुआ है कि सूबे में साफ़ पानी की अदम दस्तयाबी और वाटर फिल्टर प्लांट्स की ख़राबी के बाइस हेपेटाइटिस का मरज़ बढ़ रहा है। ये भी मालूम हुआ है कि रवां साल के जो पहले 6 महीने हैं इसमें हेपेटाइटिस सी और बी के 10,000 मरीज़ सूबे के हॉस्पिटल्स में लाए गए हैं। बहुत बड़ी फिगर है, 10,000 पेशेंट्स ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी, जबकि 3,000 मरीज़ सिर्फ और सिर्फ जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट हुए हैं। क्या जाफराबाद एक हॉट स्पॉट बन चुका है हेपेटाइटिस का, और इससे मुताल्लिक क्या काम हो रहा है, हम बात करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। लियाकत साहब, 10,000 पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं सिर्फ 6 महीने में, और जाफराबाद से ही 3,000। थोड़ा सा शेयर कीजिएगा कि हो क्या रहा है सर? जी, बुनियादी तौर पे जो कंटेमिनेटेड वाटर है ये मेन काज बन रहा है हेपेटाइटिस बी और सी का, और ये खसूसन सिंध से जो पानी कीर्तर कैनाल और जो गुड्डू बैराज से पटफीडर में पानी आती है, ज़ाहिर है वो सिंध के मुख्तलिफ एरिया से होकर आती है, वहाँ पे ये कंटेमिनेटेड हो जाती है, और यही पानी जो है यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये केसेस, और हमने पहले भी पिछले साल भी इस पे आवाज़ उठाया था कि ये जो पानी वहाँ से आती है, जो गंदा पानी है, जो फुजला है, वो इसमें मिक्स ना किया जाए। तो अनफॉर्चुनेटली ये पानी मिक्स कर देते हैं ताकि वो पानी की जो मिकदार है उसको बढ़ा के बलूचिस्तान भिजवाया जाए, ताकि कोटा जो है वो इंक्रीज दिखाई दे, लेकिन उसका एक ये नुकसान सामने आ रहा है। दूसरा ये है कि लोग भी कम एहतियात करते हैं। हमने कैंपेन ड्राइव किया था कि प्रिवेंटिव रिजीम में कि लोग जो है पानी उबाल के पिए, लेकिन उस तरफ भी लोगों का ध्यान कम है। तीसरी वजह यह है कि लोग बार्बर शॉप में जाते हैं, शेव कराते हैं, तो जो डिस्पोजेबल रेज़र है उसका तकाजा कम करते हैं, और जिस तरह का भी रेज़र या ब्लेड इस्तेमाल किया जाए लोग उस पर क्वेश्चन रेज नहीं करते, उसकी वजह से भी बढ़ रही है। तीसरी वजह यह है कि लोग जो वैक्सीन है वैक्सीनेशन नहीं कराते, जब बीमार हो जाते हैं डॉक्टर के पास कम या ताई डॉक्टरों के पास जाते हैं, या फिर जो रिवायती इलाज है वो कराते हैं। हेपेटाइटिस बी सी को यरकान का नाम देकर कुछ लोग गले में प्याज लटका देते हैं, और जूं जूं प्याज का कलर फेक होना शुरू हो जाता है, पीला होना शुरू हो जाता है। एक अकीदा है लोगों का कि शायद वो प्याज जो है सारा जो यरकान है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और एब्जॉर्ब होने के बाद जो है ये उनकी बीमारी ख़त्म होगी। तो फिर वो एक ऐसे स्टेज में फिर पहुंच जाते हैं कि फिर लीवर सिरोसिस हो जाती है, लीवर जो है श्रिंक होना शुरू हो जाता है, और फिर उस मरहले पे इलाज का भी इतना फ़ायदा नहीं होता। अलगर्ज के बलूचिस्तान गवर्नमेंट में बलूचिस्तान अवामी इंडोमेंट फंड के नाम से जो एक्यूट डिजीज़ हैं जिसमें लीवर ट्रांसप्लांट भी है, उसमें 1 लाख से 1 करोड़ तक किसी आम शख्स को भी
बलूचिस्तान गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है और काफ़ी लोगों के हमने ट्रांसप्लांट जो है इस्लामाबाद के अल-शिफा हॉस्पिटल में, पाकिस्तान के दीगर हॉस्पिटल्स में हमने कराए हैं। लेकिन ये है कि हमारा कैंपेन जारी है, वैक्सीन हमारी अवेलेबल है 10 प्रिजन्स में। अभी हमने ये कैंपेन शुरू किया है क्योंकि जेल में भी हेपेटाइटिस के बहुत ज़्यादा शिकायत हैं। बलूचिस्तान के 14 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स जो है डिक्लेयर किया है, जिसमें मेनली नसीराबाद डिवीजन्स के हैं, जिसमें नसीराबाद है, जाफराबाद है और बाग का एरिया, कुछ और एरियाज हैं। 14 डिस्ट्रिक्ट जिक्र भी हम गवर्नमेंट के फोकस जाफराबाद का जैसा हमने जिक्र भी किया, कता कलामी की माजरत, लेकिन जो वजूहात आपने बताई इसमें पहली वजह साफ़ पानी का ना होना। हमने देखा था कि पानी की किल्लत पर जो है वैसे ही बड़ी लड़ाइयाँ रही हैं, इसकी तकसीम पर झगड़ा रहा है। अगर जितना पानी मिल रहा है और वही पानी साफ़ भी नहीं होता, आवाम को वो पानी साफ़ नहीं मुहैया किया जाता, आपकी नज़र में ये ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है आवाम को साफ़ पानी मुहैया करना? पीछे से गंदा आ रहा है लेकिन जितना पानी मिल रहा है उसको साफ़ करना आपकी नज़र में किसकी ज़िम्मेदारी है? ये हमारी ज़िम्मेदारी है। नॉट ओनली प्रोविजन ऑफ वाटर, तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि हमने आवाम को पहुँचाना है, और ये आवाम की ज़िम्मेदारी है कि गवर्नमेंट जब कोई कैंपेन रन करती है, अवेयरनेस ड्राइव कोई हम शुरू करते हैं, उस पर अमल करें। पानी हमारा फोकस है। 300% जो है हमने ड्रिंकिंग वाटर प्रोविज़न के लिए एलोकेट किए हैं। 9 अरब से 29 अरब तक हमने उसमें इजाफा किया, 20 अरब का इजाफा, और 2 बिलियन का इसके अलावा हमारा कच्ची प्लेन प्रोजेक्ट है जिससे हम लोगों को पानी फराहम कर रहे हैं। कोस्टल बेल्ट में RO प्लांट्स हम लगा रहे हैं, और इसी तरह 445 हमारे पुराने जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनमें कोई 106 वो ख़राब हो गए थे, 60 को हमने रिपेयर कर लिया है। और इसके अलावा भी जो डैम्स हैं उस पर हमने काम का आगाज़ किया है। 2500 नए ट्यूबवेल्स के स्कीमात इन 3 सालों में हमने इंस्टॉल किए हैं, और सोलराइजेशन 250 ट्यूबवेल्स, क्योंकि बहुत एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है उसकी सप्लाई वो मुअत्तल हो जाती थी, उसको 2500 ऐसे 250 ऐसे ट्यूबवेल्स को हमने सोलराइजेशन पे कन्वर्ट किया है। तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट का इसके हवाले से बहुत बड़ा हमारा फोकस है, और इसके अलावा हमारा जो है सोलर सिस्टम पाइपलाइन और प्लानिंग का जो है स्टैंडर्डाइजेशन का एक स्कीम है वो चल रहा है। 7 बिलियन रुपीस का हमने अभी फेज़ 1 फेज़ 2 में फिजिबिलिटी मुकम्मल करके खसूसन जाफराबाद, नसीबाराबाद, डेरा लायार, बाग, कच्ची, इन एरियाज को पानी की फराहमी के लिए 7 अरब रुपए का एक फिजिबिलिटी स्टडी हमने मुकम्मल करके फेडरल गवर्नमेंट को भिजवाया है, और इसमें मोस्ट प्रोबेबली फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट 50-50% हम पैसे एलोकेट करके इस पे भी काम का आगाज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। की तारीख में आप देख लें कभी इतने स्कीमात जो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन अब इस पर काम हो रहा है। ठीक है लियाकत साहब, थैंक यू वेरी मौजूद थे आप, और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू करें। वेलकम बैक। चुन्ने मुन्ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की बात करते हैं। घर की रौनक होते हैं ये बच्चे जो घर में हो या बाहर, चलते फिरते शरारती ये बच्चे, बड़े हमें शरारत करते ही आजकल नज़र आते हैं बच्चे। उछलते कूदते, बल्कि अक्सर कहना पड़ता है ये एनर्जी कहाँ से आती है, खाते पीते हैं नहीं, और हर वक्त इनकी जो एनर्जी है वो हाई रहती है। क्या आपको मालूम है बच्चों के लिए पैदल चलना फिरना कितना मुफीद है? और ये जो हम बात करते हैं चलने फिरने की, बच्चों की, चाहे 1 साल का बच्चा भी हो, उसके लिए जब वो चलना स्टार्ट करता है तो रात को ज़रा हम पैर भी दबा रहे, टांगे भी दबा रहे हैं कि बच्चा थक गया, इसने नया चलना स्टार्ट किया है। बट ये कितना ज़रूरी है उसके लिए एक्सरसाइज? अब कहना चाहिए कि बच्चे के लिए घर में छोटी सी जिम कितनी ज़रूरी है, 1 साल का बच्चा हो या 10 साल का बच्चा हो। इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन की डॉक्टर अनोखी खानम साहिबा ने, पीडियाट्रिशियन है एट एप्पल ट्री फैमिली क्लिनिक एंड विद द डायरेक्टर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ IRD। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? फाइन, थैंक यू। 1 साल का बच्चा कितना चलना फिरना चाहिए उसको जब वो चलना स्टार्ट कर देता है? तो जितना वो चाहता है। जितना वो चाहता है। और रात को जब टांगे दर्द करें उसकी तो फिर नहीं, दर्द करना नहीं चाहिए। कभी कभार बच्चे को वो होते जो हम कहलाते हैं ग्रोथ पेन, वो तो नॉर्मल प्रोसेस होती है। हमें नहीं पता ये क्यों होता है, मगर चंद बच्चे में होते हैं, हर बच्चे में नहीं होता। अच्छा, ठीक है।
मगर जब बच्चे चलने शुरू करते हैं तो आप उनको रोकना नहीं चाहिए, उनको चलने दें, उन्हें आज़ादी से फिरने दें, छलांग मारने दें, गिरने दें, जो भी करना है करने दें। जब ये छोटे होते हैं ना, तो जब ये गिरते उसी से वो सीखते हैं। यस, ठीक है, अगर आप इस बच्चे को गिरना नहीं देंगे ना तो वो कैसे सीखेगा नहीं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना, बच्चे ज़्यादा खेलते कूदते हैं, फिर वो थक जाते हैं और बुखार हो जाता है उन्हें, ऐसा होता है? नहीं होता। नहीं, बुखार जो होती है थकावट की वजह से नहीं, ये इन्फेक्शन की वजह से होती है। इन्फेक्शन का सिम्टम है, इन्फेक्शन की सिम्टम होती है। मट्टी में खेल रहे हैं, कोई इन्फेक्शन हो गया, इसलिए बुखार हो गया। ये हीट स्ट्रोक जो होती है सेपरेट चीज़ होती है, मगर ये जो लोग बोलते हैं मेरा बच्चा ने बहुत खेला है या ठंडा हवा लगा है या ठंड हो रही थी या ये हो रहा था इसलिए बुखार हुई थी, ये गलत बात है। बुखार का मतलब इन्फेक्शन। तो अगर आपके बच्चे को बुखार हो रही है तो आपको ढूंढना है कि बुखार कहाँ से आ रहा है, इन्फेक्शन कहाँ पर है। हम तो ये भी कहते हैं कोई और आया था बाहर से, वो देख के क्या बच्चे को बुखार हो गया, मेरा बच्चा खेल कूद रहा था, नजर लग गई ना, नजर लग गई। ये नजर लगना भी इन्फेक्शन है क्या? नहीं, ऐसा कुछ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब बच्चा ज़्यादा खेल कूद रहा है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो फिर खुराक भी ऐसी होनी चाहिए ना, फिर क्या वालिदैन को क्या खिलाना पिलाना चाहिए? बच्चे के नॉर्मल कैलोरी कंजम्पशन होती है, ठीक है। हमारी पाकिस्तान में आदत होती है कि हमें तो मोटे मोटे बच्चे चाहिए, ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना जब बहू पतली चाहिए लेकिन जो पोता है वो मोटा चाहिए। आपका अपना बेटा मोटा, और जब भी कोई मुझे अपना बेटा ऐसा हो जब भी कोई मुझे बोलता है कि आप बहुत हेल्दी लग रही है, मुझे पता है वो मुझे मोटे बुला रहे हैं, ठीक है, मैं बहुत इंसल्ट हो जाती हूँ। तो हमारी ये कॉन्सेप्ट ख़त्म करनी चाहिए। बच्चे की ऑटोमेटिक कैलोरी कंजम्पशन होती है, इसको ज़बरदस्ती खाना मत खिलाना, उनको सही से टाइम पर सुलाना है, सही से टाइम पर खाना खिलाना है, मगर हेल्दी खाना, सेहतमंद चीज़ें। ये जो चिप्स, बिस्किट्स, केक्स, ये स्नैक्स नहीं होती है, नगेट्स, ये स्नैक्स नहीं होती है, ये जंक फूड होती है। फ्रेंच फ्राइज, मैंने बोला है अपनी पेशेंट्स को कि आपके बच्चे को यही सोच लो कि सारे जो ये पोटैटो उर्दू में क्या बोलते हैं, आलू कभी कभार अल्फाज भूल जाती हूँ। आलू जो है ना, सोचो कि ये जंक फूड है, क्योंकि वरना अगर मैं ये नहीं बोलती हूँ तो आधा दिन बच्चा फ्रेंच फ्राइज खा रहे घर के पके हुए, और पेरेंट्स सोच रहे कि फ्रेंच फ्राइज खा रहे घर के पके हुए तो हेल्दी है। ऑयल नो, पोटैटो में इतनी ज़्यादा हिफाजती चीज़ें नहीं होती है, स्टार्च ज़्यादा होता है। बिल्कुल, स्टार्ट में बच्चे को आलू बॉयल करके दे रही होती हैं। तो जो जिसी सब्जी या फल या गोश्त के साथ आप शुरू कर रहे खाना, कोई बात नहीं, कर लें। अगर आप आलू देना चाहते हैं तो दे दे, ठीक है, मगर क्या होता है कि ये आधा दिन बच्चा फिर सिर्फ आलू ही खाता है, फिर आलू बन जाता है। हाँ, फिर आलू बन जाता है। अभी माँ कहती मेरा बच्चा देखा कितना मोटा है। हाँ, तो इसलिए मैं बोलती, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, परेशान होते हैं, मेरा बच्चा रोटी नहीं खा रहा है, दाल नहीं, वो चावल नहीं खा रहा है। तो मैंने बोला बच्चा क्या खा रहा है? वो तो सिर्फ वो गोश्त या ये सब्जी अकेला खा रहा है, पालक ऐसे हाथ के साथ खा रहा है। मैं तो हाँ एग्जैक्टली, मैं तो हंस रही हूँ, मैं बोला वही तो चीज़ खाना चाहिए, वो तो बहुत अच्छी बात है। यस, मेरी कोई फिक्र नहीं होती कितनी रोटी बच्चा ने खाया, मुझे पता होना चाहिए कि बच्चे ने कितनी सालन खाए, कितनी सब्जी खाए। और ये याद रखना, ये जो है मुट्ठी, ये हमारा पेट का साइज़ है। हम सब लोग मोटे हैं क्योंकि हम कितने खा रहे हैं, इस पेट के साइज में कितना खाना घुसाने चाह रहे हैं। इस मुट्ठी में हम दो रोटियां कैसे डालते हैं, एक प्लेट बिरयानी कैसे डालते हैं, शादी में बूफे कैसे डाल लेते हैं इस मुट्ठी जितने पेट में। मैं यही सोच रही हूँ कि इस मुट्ठी के बराबर अगर पेट का हो तो ये पता नहीं 5-6 मुट्ठियाँ बच गई। तो सही कहते हैं, यहाँ तक भर गए। हाँ, इसलिए हम सब वजनी बहुत बड़े हैं, क्योंकि बचपन से हमारी आदत बन गई है, हमारे माँ बाप हमें ठोक ठोक कर खाना खिला रहे हैं। और फिर हमारी जो ब्रेन के अंदर जो एपेटाइट सेंटर है, जो हमें बताता है कि अब पेट भरा हुआ है, वो बंद हो जाता है। जब आप बच्चे को फोर्स ठोक ठोक कर खाना खिला रहे हैं तो ये एपेटाइट सेंटर, ये जो सेटेशन सेंटर है कि पेट भरा है, बंद हो जाता है, और फिर बच्चा भूल जाता है कि कैसे पता होता है कि मेरा पेट भर गया, और फिर मोटे बच्चे बन जाते हैं। और फिर टीनेज ईयर्स में मेरे पास बच्चे हैं जो इतने मोटे मोटे गोल गोल, अब बाद में ज़रा मसाइल बढ़ जाते हैं। हाँ, और देन डायबिटीज़, प्री डायबिटिक है, कोलेस्ट्रॉल हाई होती है, ब्लड प्रेशर हाई हो रही है टीनेज ईयर्स में, 13-14 साल के बच्चे। बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि हम बच्चों में बच्चों को ठूस ठूस के खिला रहे हैं और ज़्यादा खिला रहे हैं। हाँ, और बच्चा
आदत हो गया बहुत खाना, और फिर कचरा भी खाना, ये सारे फ्राइज बिस्किट ये सारी चीज़ें, और लोग सोचते हैं कि नहीं कभी कभार लेता है। मैंने कभी कभार दिन में 4 दफ़ा। Exactly, मैंने बोला आपने कभी लिखा है कि कितनी दफ़ा लिया है? अच्छा, मैं यही सवाल आपसे करना चाहती थी कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि खाते ही सिर्फ हैं और फिर माँ बाप कहते हैं चलो कुछ तो खा रहा ना, लेकिन जैसे जंक फूड की बात हो रही है, अगर वो नहीं देना बच्चे को, ये नहीं खिलाना, तो फिर क्या उसे भूखा रहने दें? हाँ, भूखा रहने और वो खिलाएं जो उसके लिए सही है। हाँ, क्योंकि बच्चा कभी भूखे नहीं मर के थे। अगर बच्चा खाना ज़बरदस्ती नहीं खा रहा है तो उसका मतलब है कुछ मसला है, ठीक है, सेंसरी डिसऑर्डर या ऐसी कुछ। अगर मेरे पास 15-18 महीने के बच्चे आए जो वो सॉलिड्स पर बहुत मुश्किल से खिलाते हैं, ठीक है, उनकी सेंसरी डिसऑर्डर, मगर ये बहुत रेयर चीज़ है, ये आम बच्चे में नहीं होते, ज़्यादा तौर नहीं होते। क्या होता है मेरे पास ज़्यादा तौर क्या आता है कि माँ बाप इतने परेशान हो रहे हैं, बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो दूध पिला रहे, और फिर बच्चे को आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाती है, बहुत कम खून हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा दूध पिलाने से खून की कमी हो जाती है, ठीक है, वो सॉलिड्स नहीं दे रहे। और फिर सेम थिंग, अगर आप कचरा खिला रहे हैं तो बच्चा का भूख नहीं लगेगी, एम्प्टी कैलोरीज दे रहे हैं। अच्छा, जैसे बच्चे होते हैं ना, मतलब मैंने तो ऐसे बच्चे देखे हैं कि एक बच्चा अगर फ्राइज खा रहा है तो कहेगा यही चाहिए अम्मा, फिर अम्मा ये कहती है कि अच्छा बाहर से नहीं घर में बना के मैं दे देती हूँ। आपने उसको तो क्लियरली कहा कि भाई नो, लेकिन घर में भी फ्राइज नहीं बना के देने। कभी कभार, मैंने बिल्कुल मना नहीं किया, मैंने बोला है कभी कभार दे सकते, क्योंकि आप जालिम मामला। ये चलिए डॉक्टर साहब ये बताएं कि फॉर एग्जांपल बच्चों को फ्राइज देने आपने ना कभी कभी वाली जो बात हम करें, हफ्ते में एक बार, वो जो एक बार फ्राइज देने हैं उसे किस ऑयल में फ्राई करें, या यूं करें कि बेक्ड पोटैटो दे दें, क्या बेहतर है? हाँ, तो आप यू कैन डू एयर फ्रायर्स, यू कैन बेक इट, पोटैटोस को बेक भी कर सकते हैं, फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसे आपने आलू दे भी दिया है लेकिन दुरुस्त तरीके से दिया है। हाँ, यू कैन मिक्स इट विद गार्लिक, विद चीज़, दूसरी चीज़ें के साथ। आपको, हमारे पास एक अच्छी चीज़ है जिसका नाम है इंटरनेट, उसके ऊपर इतनी सारी अच्छी रेसिपीज होती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, आपने चीज़ की बात की, काउ चीज़ या दीजर जो चीज़ है बच्चों को आजकल बड़ी पसंद होती है, वो चीज़ अगर ज़्यादा खा लें तो उससे कोई मसला है, नुकसान है? तो वही चीज़ है ना, एवरीथिंग इन मॉडरेशन। अच्छा, एक उसका जो पीस है वो इनफ है। और ये भी याद रखना है जो हाईली प्रोसेस्ड चीज़ होती है इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अच्छा, जो हाईली प्रोसेस्ड चीज़ होती है उतनी ज़्यादा, और बच्चों को सिर्फ पैस्चराइज्ड, तो ये सारी जो चीज़ के ऊपर मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं होता, जिसके ऊपर फंगस होती है, ये वाले जो फ्रेंच वाली चीज़ है, इटालियन वाली चीज़ है, ये नहीं खिला सकते छोटे बच्चे को, मगर पैस्चराइज चीज़ खिला सकते हैं, मगर एनीथिंग दैट्स हाइपर प्रोसेस्ड वो नहीं खिला सकते। और मैंने कुछ माओ को देखा वो शुरू से बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक्स की आदत डालनी, फीडर में डाल के दे दिया, अच्छा चलो ये पी तो लिया ना इसने, अगर उनकी चीखें निकलने लगी, जिन्होंने कंट्रोल किया, ये उन माओ के लिए वाकई एक झटका था। मतलब बच्चे को कार्बोनेटेड ड्रिंक, इट्स लाइक अ पॉइजन, राइट? यस, प्लीज मत दे, एब्सोल्युटली नॉट। हाँ, और फिर माओ के लिए ये है कि चाहे वो 1 साल का बच्चा है, चाहे वो 5 साल का बच्चा है, ये 6 साल का बच्चा है, जितना चाह रहा है खेलना कूदना उसको खेलने दें। हाँ, गिरता है तो गिर के सीखेगा। याद रखना है कि बच्चे को कंपल्सरी है कि दिन में 1 घंटे तक उनको वर्जिश करनी है, एक्सरसाइज करनी है। एक दफ़ा नहीं करने की जरूरत नहीं है, 15-15 मिनट 20-20 मिनट कर सकते हैं, मगर रेकमेंडेड है 1 घंटे मिनिमम बच्चे को 1 घंटे की उसकी फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, और साथ साथ जो आपने खाना पिलाना है, खिलाना पिलाना है, वो डॉक्टर साहब ने बताया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थी आप, और इससे मुतालिक रहनुमाई कर रही थी हम सब पेरेंट्स की बेसिक, क्योंकि हम बहुत जगह पे कोताहियाँ करते हैं। बढ़ते हैं आगे, मिलवाएंगे एंटरप्रेन्योर से, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जो ना सिर्फ माशाल्लाह राह बन रही है लड़कियों के लिए, बल्कि हम देख रहे हैं कि अगर किसी ने कोई नया सेटअप करना हो, कोई नया स्टार्टअप हो, तो उसके लिए कैसे एक रास्ता दिखा सकती हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुंजा, यहाँ से इनका ताल्लुक है। नौशीन बरकत हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, यूँ तो कराची में रहती हैं लेकिन इन दिनों छुट्टियाँ मनाने इस खूबसूरत वादी में मौजूद है। नौशीन इन दिनों सोशल मीडिया पर इसलिए तवज्जो का मरकज़ है चूँकि उनकी वालिदा ने हुंजा से शहद भेजा और उनकी बेटी ने कराची में कारोबार शुरू किया। 2 बरस से ऑनलाइन शहद फ़रोख्त कर रही हैं। उनकी वालिदा और कुछ मकामी ख़वातीन वादी हुंजा में शहद की मक्खियों की परवरिश करती हैं और यूँ वो शहद तैयार करके नौशीन को कराची भेजते हैं। नौशीन ने मैं ज्वाइन करें। नौशीन अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम शुएब, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, हम अच्छे हैं। लेकिन आप जहाँ पर हैं वहाँ का तो मौसम बड़ा अच्छा होता है। इस वक्त तो ऐसा है ना कि आपने फ़ोन ऑन किया, देखा अच्छा 10 लोग और हुंजा पहुँच गए, फिर बंद किया, फिर चेक किया 10 लोग और हुंजा पहुँच गए। तो वाकई ऐसा ही है, आप भी उन्हीं में से हैं, पहुँच गई हुंजा।
یہ بالکل جو آج کل آپ کو سوشل میڈیا پہ بڑا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ سب لوگ ماؤنٹینز آر کالنگ اینڈ نارتھ از کالنگ، تو سب لوگ آئے ہوئے ہیں، تو میں نے سوچا یار میں وہاں کیوں کہ میں کیوں نہ جاؤں، خیر چھٹیاں انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے یہاں پہ۔ اور شعیب بھی ابھی ہو کے آئے ہیں، کبھی یہ جاتے ہیں چترال اور کبھی جاتے ہیں یہ آزاد کشمیر اور وہاں کے پہاڑ دیکھتے ہیں، وہاں کا موسم دیکھتے ہیں۔ ایسے ہاتھ اٹھائیں، ایسے ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں اللہ میاں محمد شعیب کو ہنزا لے جا، آمین۔ چلیں آپ ذرا۔ اچھا نوشین مجھے یہ بتائیں، بڑا زبردست کام ہے، والدہ آپ کو شہد بھیجتی ہیں اور آپ کا کاروبار کراچی میں، میں چاہوں گی یہ جو سفر شروع ہوا تھا نا، یہ شروع سے مجھے سفر کی کہانی ذرا سنائیں۔ سفر جو ہے جیسے شہد میٹھا ہوتا ہے بالکل اسی طرح ہماری ایک سٹوری بھی بہت میٹھی ہے، اور دو خواتین کی سٹوری ہے یہاں پہ میں بیان کروں کہ ایک میری ماما کی سٹوری ہے، ایک میری سٹوری ہے۔ ماما نے سٹارٹ کیا ہم سب بہن بھائیوں کے لیے، ہم سب کو بہت پسند تھا شہد، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں خود شروع کروں، جو میں مطلب بازار سے آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ شہد اصلی ہے کیا ہے، اس میں ملاوٹ ہے، تو آپ کو پتہ ہے مطلب مدر ایسی ہوتی ہیں کہ جو بچوں کے لیے کچھ بھی کر جاتی ہیں، تو انہوں نے ٹریننگ حاصل کی، حاصل کرنے کے بعد ایک باکس سے پھر سٹارٹ کیا اور بس وہاں سے وہ بیچتی تھی ہم سب بہن بھائیوں کو۔ اور انہوں نے اگلا جو کام کیا خواتین کو امپاور کرنے کے لیے، ہماری لوکل خواتین مطلب ہمارے گاؤں کے 7 خواتین کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا اور جناب ان کو امپاور کیا، ان کو ٹرین کیا اور پھر اپنے ساتھ ایز اے گروپ میں کام سٹارٹ کیا، اور پھر یہ جو کام ان خواتین کے لیے یہ ذریعہ معاش بن گیا، وہ اس کو انکم جنریشن کے لیے یوز کرتی تھی، جبکہ میری مدر جو تھی وہ صرف ہم بہن بھائیوں کو اور خاندان والوں کو سینڈ کرتی تھی۔ تو یہ کام جو انہوں نے کیا نا وہ بہت ہی انسپریشنل تھا، جو کہ دوسری خواتین کو امپاور کرنا تھا۔ اس کے بعد جو میری سٹوری ہے بس یہ ہے کہ میں نے اپنی لائف کی جو سب سے مشکل ترین میرا مرحلہ تھا اس کو میں نے اپورچونٹی میں چینج کیا۔ میرا سب سے ڈیفیکلٹ فیز تھا جب میرے بیٹے کی برتھ ہوئی اور ہی از اے اسپیشل بورن چائلڈ، ان کے لوور سائڈ پہ موومنٹ نہیں ہے، تو اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے، اس چیز سے نکلنے کے لیے، اس ڈپریس فیس سے نکلنے کے لیے میں نے سوچا کیوں نہ جو میری مدر اتنا اچھا کام کر رہی ہے، وائی ناٹ برنگ اٹ ٹو بگر لیول اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو اس سے، کیونکہ مائی مدر اور وہ جو خواتین ہیں دے آر ویری آنیسٹ، تو وہ جو کام کرتی ہیں ان کو میں کیا کہوں، اس کو عبادت کی طرح کرتی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ہم سے لوگ لے کے جاتے ہیں یہ ایز اے میڈیسن لے کے جاتے ہیں، تو وہ بالکل اسی طرح اسی فارم میں ہو، پیور ہو، را ہو اور اس میں کوئی چیز مکس نہ ہو۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ جو شہروں میں لوگ ان کو مارکیٹ میں نہیں ملتی پیور شہد نہیں ملتا، کیوں نہ اس کو وہاں تک لایا جائے، بس تو اسی خدمت بھی ہے، عبادت بھی ہے، یہ تو اتنا زبردست کام ہے۔ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ جب سٹارٹ کیا اور اس کے بعد اور خواتین کو امپاور کیا، اب کس لیول پر ہے، کتنے باکسز ہیں، کتنا شہد تیار ہوتا ہے؟ شعیب الحمدللہ ہم نے 1-2 باکسز سٹارٹ کیا تھا اور اب ہمارے پاس باکسز ہیں، اور اس 40 باکسز کے میرا یہاں پہ رکنے کا ارادہ نہیں ہے، میرا ارادہ اس کو بہت ایکسپینڈ کیا جائے اور اتنا ایکسپینڈ کیا جائے کہ جتنے بھی یہاں پہ خواتین ہیں، اسپیشلی میں اس کو پروموٹ کرنا چاہتی ہوں خواتین کو، کیونکہ اس کو مردوں کا فیلڈ سمجھا جاتا ہے کہ ہنی بی کیپنگ جو ہے یہ خواتین کا کام ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان کا فلورا اتنا یونیک ہے، یہاں کا آپ نے وزٹ کیا ہوگا، یہ مطلب اتنی پولوشن نہیں ہے یہاں پہ اور نیچرل چیز آپ کو ملتی ہے، اور یہاں کے ہنی میں اور دوسری جگہ ہنی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، تو میں اس کو اتنا ایکسپینڈ کرنا چاہتی ہوں، اس لیول پہ لانا چاہتی ہوں کہ میں پاکستان میں ایک فرسٹ ایور ویمن ہنی بی کیپنگ ایسوسی ایشن بنانا چاہتی ہوں، جس میں ہمارے علاقے کی جو ساری خواتین ہیں جو ایک باکس یا 2 باکسز کے ساتھ کام کر رہی ہیں ان سب کو ملایا جائے اور اس کو ایک بہت پازیٹیو امیج پاکستان کا اور گلگت بلتستان کا دیا جائے کہ یہاں کی خواتین کسی سے کم نہیں ہے، اور امیج جا بھی رہا ہے کہ خواتین مل کے ماشاءاللہ سے اتنا اچھا کام، اور یہ وہ کام جو کہ بڑا مشکل لگتا ہے نا دیکھنے میں کہ شہد کی مکھیوں کا چھتا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی والدہ ہنزا سے شہد بھیجتی ہیں، کراچی میں آپ کی کیا کیا ذمہ داری ہیں، کس طرح سے یہ لوگوں تک پہنچتا ہے، لوگوں کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ ہنزا کا شہد آیا ہے؟ میں شروع میں تو تھوڑا مشکل، مطلب میں کہوں سٹارٹ کیا تو تھوڑا مشکل ہوا،
एंटरप्रेन्योर बनी थी। तो इस डिफरेंट मैंने ऑनलाइन कोर्सेज किए, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स अपने डेवलप किए, उसके बाद फिर मैंने इसकी एडवर्टीजमेंट स्टार्ट की। एक तो हम ऑनलाइन है हमारा महक, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, फेसबुक पे ASQURR के नाम से पेज है, अस्कुर। और अस्कुर मेरी जबान का ब्रिशिस्की का एक वर्ड है और दिस का मतलब है फूल। तो इसको एक नाम जो मैंने चूज किया है अस्कुर, वो के कनेक्टिविटी एक फील हो अपने इलाके से, और जो भी इसको सुने उनको लगे कि हाँ ये इस जगह का ही है। तो और सेकेंडली मैं जो है डिफरेंट एग्जीबिशंस में टेक पार्ट करती हूँ। मैं कि जहाँ भी कोई एग्जीबिशन हो, चाहे वो कराची में हो या कराची से बाहर हो, मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ अपना जो प्रोडक्ट है, ये जो हनी है, इसको इंट्रोड्यूस करूँ, जाके लोगों को बताऊँ। तो इसी तरीके से लोगों को पता लगता है और लोग जो है बहुत पसंद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री का भी इरादा है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह, वेरी सून, इंशाल्लाह। और ये थोड़ा सा बता दें, आप जरा इस काम से वाबस्ता हैं, हमें कैसे मालूम हो या किसी को भी कैसे मालूम हो शहद चखने के बाद कि ये शहद बिल्कुल प्योर है? शुएब, एक्चुअली जो शहद के डिफरेंट टेस्ट होते हैं, आप उसको कह सकते हैं कि आप इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई ऐसा ऑथेंटिक शहद का कोई टेस्ट नहीं जिससे आप कहें कि चख के कह सके कि हाँ ये शहद जो है ये असली है या इसमें कोई मिलावट नहीं है। हाँ, लेकिन मैं जो है पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ, बिकॉज ये काम मेरी मदर संभाली, और इसके अलावा उस बॉक्स से, मतलब हनी बॉक्स से और हनी जो मेरा बॉटल है उसके बीच तक और कोई बंदा नहीं है ना। ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम दैट हनी कॉम हम कह लेते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम दैट हनी कॉम। ग्रेट। तो मैं तो गारंटी दे सकती हूँ कि ये प्योर है। और मैंने जैसे कहा कि इसको मेरे मम्मा से एज अ मेडिसिन लोग लेके जाते हैं, तो आप मतलब इसको एज अ क्या कहूँ, लोगों की खिदमत हो गई, उनकी इबादत हो गई और उनकी सेहत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक वीडियो भी हम आपके साथ देख रहे हैं जिसमें आप ऐसे ऐसे करके बुला रही हैं, पूरा आपने इसका मतलब विजिट करवाया है उस जिस जगह पे ख़वातीन है। ये यहाँ पर ये सारे बॉक्सेस रखे हैं, बड़ी प्यारी सी ये जगह लग रही है। कभी ऐसा हुआ कि वैसे तो प्रोटेक्शन के साथ जाते हैं, काट लिया हो मक्खी ने? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ है। लास्ट टाइम बल्कि मैं कहीं पे एक मीम देख रही थी, कोई किसी से पूछ रहा था कि मुझे कैसे पता लगे कि तुम्हारा आंखें सूजी हो और काटा हो मक्खी। सूजी भी शक्ल सेंड की थी कि देखो ये मेरी शक्ल है, कहा प्लीज मेरा ऑर्डर प्लेस कर दो। बिल्कुल ऐसा। ठीक है। मतलब इतना जैसे मदर है, अक्सर को वो पूरी प्रोटेक्शन, जैसे मैं जो हूँ मैंने पूरा कुछ पहना होता है, तो मेरी मदर अक्सर ये नहीं पहनती, सिर्फ ग्लव्स पहन रही होती हैं। और उनकी इनके साथ इनकी दोस्ती, उनको लगता है कि ये नहीं ऐसा कुछ करेंगे। और फ्रेंकली स्पीकिंग जो हनी बीज है ना, ये आपको तब तक स्टिंग नहीं करते जब तक इनको ये फील ना हो कि आप इनके लिए डेंजरस हैं, आपके लिए खतरा है। तो उसके अलावा वो आपको स्टिंग नहीं करेंगे। मेरी मामा इनको हाथ से ऐसे उठाती भी हैं और वो स्टिंग नहीं करते। वाह, आपकी मामा से मिलने अब हम वहीं पर आएंगे। ये हमने देख लिया कि हुंजा का शहद जी स्टार्ट किए, बल्कि बहुत से लोग जो हैं टूर एजेंट्स मेरे से कांटेक्ट में थे कि हम आपके जो हनी फार्म है अपने, जो जैसे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं तो वो देखना चाहते हैं। बिल्कुल, हम भी देखना चाहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, सो नाइस टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक यू वेरी मच। वक्त हो गया जनाब ख़त्म, मुलाकात करेंगे कल। बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।